Good evening, everybody. Sunita Sharma, ma'am, are you ready? Yes, sir. Good evening, sir. Is our moderator present? Chitra, ma'am. Yes. Yes, sir. Yeah, good evening, everybody. Arun Mohan, Good sir, evening, are sir. you there? Yes, sir. Yes, I am here. I think it's time to start. Yes, sir. Please. All right. So, everyone, welcome to the 176th web training series of our BTAG. So, it's time to invite our moderator. So, let me turn on the AI. Dear educators, I the entity would like to welcome you to the 176th session of BTAG deals with the innovative and diverse classroom activities for teaching Hindi. Now, before doing any further according to the protocol, let me wish a belated but grand Teachers' Day to all the members of BTAG Consortium. And hold on, according to the calendar, today it's Krishna Janmashtami. So I wish you a very happy Krishna Janmashtami to you and your loved ones. Now it's time to invite our moderator. So I welcome our new AI, Lisa. Good evening to all the exuberant educators. I welcome you all to the 176th web training series of CBSE Bharat Sahadaya. Now I take it as pleasure to introduce today's moderator, Mrs. Chitra Sharma. She has been teaching for 23 years. She joined Bhartiya Vidya Bhavan's Meta Vidyalaya, New Delhi in the year 2010, and this year she will be completing 13 years in the same school. She is a mother teacher who has the exposure of teaching the pre-primary and primary classes. She has done masters in English and BEd and has a creative bent of mind. She tries to explore new horizons to make the learning more interesting and beyond the boundaries of the classroom. She has been a NAS observer, invigilator at NET, and has attended SEL training. She is a lifetime member of BTAG Group. She has received Extra Mile Educator Award 2022 and has been honored for being a moderator in the webinars at Bharat Sahadaya Group. She has been a storyteller at a storytelling event by Creative Engagement. It is indeed a great pleasure to have you with us, ma'am. So I cordially invite you to take over this grand session. Over to you, ma'am. So, Chitra ma'am, stage is yours. Warm welcome. Thank you, sir. सभी को शुभ संध्या। सीबीएसई भारत सहोदय परिवार की ओर से सभी हिंदी सेवियों और उनकी निष्ठा को मैं नमन करती हूँ। आज के सत्र का विषय है प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के हिंदी शिक्षण में भाषा कौशलों, श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन के विकास हेतु नवीनतम और विविध गतिविधियां। सत्र के शुरू होने से पूर्व मैं आप सभी विद्वजनों से कुछ दिशा निर्देश साझा करना चाहूंगी। सत्र के दौरान आप सभी अपना कैमरा ऑन और माइक ऑफ रखिए। आपके संशय आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सत्र के अंत में प्रश्नोत्तर काल में भी आप अपना संशय निवारण कर सकते हैं। सर्टिफिकेट और फीडबैक लिंक सत्र के अंत में साझा किए जाएंगे। कृपया संयम बनाकर रखें। सत्र को शुरू करते ही मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करना चाहूंगी जिनके बारे में हम सभी बखूबी जानते हैं। डॉक्टर सलाम हम सभी हिंदी सेवियों, शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। सर सीबीएसई संसाधनकर्ता, सीबीएसई मास्टर ट्रेनर और विबग्योर स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं।
उन्हें अकादमिक समूह बीटैग, शिक्षकों के एक सिंडिकेट और दुनिया भर के शिक्षण समाज के संस्थापक होने का श्रेय प्राप्त है, जो उन्हें राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए जोड़ता है। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर सलाम। धन्यवाद। सबको नमस्कार. Good evening, everybody. First of all, let me wish everyone, all the educators, all the teachers, happy Teachers' Day. Hope everybody has celebrated it. We all celebrated yesterday because teachers are very important and they should be recognized. And we can see more than 200 teachers have joined at this juncture. I take this opportunity to congratulate each and every teacher who is pursuing their learning while working, where along with their hard work they have come to learn. So that's a very good sign of their lifelong learning. So hearty congratulations once again. We are very glad to see two Sharmas on this platform, Sunita Sharma and Chitra Sharma. And more than that, we are delighted to see Sunita Sharma ma'am in the chair of resource person today. So all the very best, you, sir. Sunita ma'am. We would like each and everyone to come forward like this. In fact, I have been, after Sunita ma'am. Right. Well, Yes. yeah. So thank you so much for offering this session, and there are many more, talented people like Chitra ma'am and Sunita ma'am. Please come forward. This platform is yours. This platform is for sharing and learning. So please come forward, share your expertise, your knowledge, your experience with us, and let us learn together. So thank you so much, each and everyone. Thank you, Arun Mohan, for bringing Mona Lisa and everyone, including Sarida ma'am, who has conducted the last two sessions on my behalf. So thank you so much. Have a wonderful evening with Sunita ma'am and Chitra. Thank you. Over to Thank Chitra. धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री बीजू एस पिल्लई को, जो गोकुलम पब्लिक स्कूल त्रिवेंद्रम के प्रिंसिपल हैं। विनम्र स्वभाव के धनी बीजू सर बीटैग में कोषाध्यक्ष का कार्यभार बखूबी संभालते हैं। बीजू सर। Good evening to all. Happy Janmashtami, and I welcome on behalf of BTAG and myself today's resource person also, and hope today's topic will encourage and help us all the educators to gain more knowledge. Wishing you all the best. I remain. Thank you. आपने सही कहा बीजू सर। जन्माष्टमी, टीचर्स डे, इन सभी अवसरों पर हमें क्या ध्यान आता है? बहुमुखी प्रतिभाएं, श्री कृष्ण और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की तरह ही हमारी आज की वक्ता सुनीता जी एक अनुभवी एवं बहुमुखी प्रतिभाशाली हिंदी सेवी हैं। इन्होंने हिंदी विषय में एमए और बीएड किया है और इन्होंने 23 साल के अनुभव में अध्यायवार, एमसीक्यूज, साहित्य सागर और एकांकी संचय, आईसीएसई कक्षा 10 हिंदी विषयवार व्याकरण, एमसीक्यूज, हिंदी नूतन अभ्यास पुस्तक आईसीएसई कक्षा 9 और 10, ऑडियो बुक, आईसीएसई कविता भावार्थ में सफल लेखन प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। सुनीता जी को अतिरिक्त मील शिक्षक पुरस्कार 2022, सम्मान प्रमाण पत्र हिंदी रत्न सम्मान 2023 प्राप्त है। भारत सहोदय ई पत्रिका में उन्होंने उप संपादन कार्य बखूबी निभाया। प्रभावी एमसीक्यूज कैसे बनाएं के सत्र में वे रिसोर्स पर्सन और मॉडरेटर भी रही हैं। हिंदी विषय राजदूत में 35 शाखाओं का सफल संचालन हमारी सुनीता जी ने किया है। पाठ्यचर्या विकास ग्रेड 5, 6 और 7 की पुस्तक डिजाइनिंग के लिए उपयुक्त सामग्री के चयन प्रक्रिया में इन्होंने भाग लिया। 13 सितंबर 2020 को नीट परीक्षा के केंद्रीय अधीक्षक
की भूमिका सुनीता जी ने निभाई। 220 शिक्षकों का मार्गदर्शन किया और विषय सुधार पर काम किया। मु- പറയാൻ പറ്റുമോ? मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आविष्कार में भाग लिया। वरिष्ठ वर्गों कक्षा 8, 9, 10 और 11 के लिए नेवियंस करियर परामर्श प्रस्तुतियां भी सुनीता जी ने दी हैं। मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में सुनीता जी ने पेपर प्रस्तुत किया। शिक्षा के सुधार में एक नई पहल के माध्यम से काम करने के लिए 100 शिक्षकों के बीच भाग लिया और वे 5वें स्थान पर रही। सुनीता जी, हम सभी उत्सुक हैं आपके बारे में इतना कुछ जानकर, आज कुछ नई विधियां सीखने के लिए। सुनीता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा मैम। मैं तो प्रसन्न हो गई जब आपके बारे में मैं सुन रही थी कहानी का प्रस्तुतिकरण। वो तो सबसे बड़ी बात है, जहाँ ये एक ऐसा जरिया है जो एक ही क्षण में बच्चों का दिल जीत लेता है। मैम, आपको वो क्रेडिट भी बीटेक को ही जाता है। मैं उषा छाबड़ा जी से साक्षात रूप में यही मिली थी और उन्होंने ही मुझे ये अवसर दिया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये मंच ही ऐसा है कि हमें न के बहुत कुछ सीखने का मौका ये मंच देता है। हमारी वो क्षमताएं जो हम नहीं जानते, इसका एहसास ये मंच हमें दिलाता है, और अपनी क्षमताओं से आगे बढ़कर काम करने का विश्वास ये मंच हमें देता है। और इसका सारा श्रेय जो है सर आपको जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हम पर हमेशा विश्वास करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सभी शिक्षक यहाँ पर जो उपस्थित हैं, आज जन्माष्टमी का पर्व है, सभी मुझे पता है व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल कर इस कार्यशाला में प्रवेश आप भाग ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करना चाहूंगी आप सभी को, शिक्षकों को नमन। मन करता है शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहता हूँ। जब भी धरा पर जन्म लूं, शिक्षक ही रहना चाहता हूँ। कोरे कागजों पर लिखकर उन्हें किताब में बनाता हूँ। अनपढ़ से शुरू कर ज्ञानी तक पहुंचाता हूँ। घनी अंधेरी दीवारों पर रोशनी की मोहर लगाता हूँ। माना कि केवल शिक्षक हूँ, विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ, मगर चंद्रमा तक जाने की पहली सीढ़ी मैं बनाता हूँ। सपना देखने और उन्हें पूरा करने का मार्ग मैं दिखलाता हूँ। जो शिक्षा देता हूँ सबको पहले आदर्श बन दिखलाता। त्याग देता हूँ इच्छाएं बहुत से, मगर कभी ना ये जताता हूँ। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहता हूँ। जब भी धरा पर जन्म लूं, शिक्षक ही रहना चाहता हूँ, शिक्षक ही रहना चाहता हूँ। चलिए अब हम इस विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय, मैम मैं अलाउ करेंगे मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा विषय है भाषा कौशल, श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, लेखन और वाचन कौशल। हम सभी जानते हैं कि एक शिक्षक के रूप में छात्रों में इन चारों कौशलों का विकास करना एक चुनौती से कम नहीं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल हमें बताते हैं सशक्त और समर्थ। जीवन के हर क्षेत्र में यही है महत्वपूर्ण। बिना इनके हम कहाँ, बिना इनके हम कुछ भी नहीं। चलिए एक छोटी सी शुरुआत के लिए कैसे एक छोटे से विषय के द्वारा हम न चाहते हुए भी बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं, इसका एक उदाहरण आप सभी के समक्ष है। मैं चाहूंगी कि आप कृपया 1 मिनट लगाकर इस कविता का पाठन करें, इसे पढ़ें और तुरंत आप सभी जान जाएंगे कि इसका विषय क्या है। और विषय बताने के लिए आप सभी को चैट बॉक्स से जुड़ना होगा।
चित्रा मैम दिखाई दे रही है स्लाइड अच्छे से? जी मैम। चलिए चैट बॉक्स में चलते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, इस कविता में विषय कौन सा उठाया गया है। नहीं जरूरत है कि हम ये विषय जो है हमारा कक्षा पहली का हो सकता है, दूसरी का हो सकता है, पांचवी का हो सकता है, 9वीं 10वीं का हो सकता है। कक्षाएं अलग हो सकती हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन सिखाने का तरीका बहुत आसान है। एक छोटी सी बात के द्वारा। अब यहाँ पर बच्चा मतलब आपने जैसे ही एक कविता का पठन किया, हमारे मन में अनेक विचार उठे। कौन कौन से विचार हैं? चैट बॉक्स में शुरुआत, यस, प्रदूषण, पोल्यूशन, यस यस। और जैसे ही हमने प्रकृति प्रदूषण की बात की या पृथ्वी बचाओ, वेरी गुड, पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि प्रदूषण के विभिन्न रूपों का वर्णन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब विभिन्न रूप, जल प्रदूषण, बिल्कुल, मृदा प्रदूषण, बहुत खूब बहुत खूब, पर्यावरण प्रदूषण और बचाव, बहुत बहुत बहुत, आधुनिकीकरण, ओके, यस, वेरी गुड, अद्भुत सोच। देखिए एक विषय को हम इस इतनी सी कविता के द्वारा हम उस विषय को कितनी मतलब ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, कितने अलग अलग रूपों में उस बच्चे को इसके बारे में बता सकते हैं। ये है एक छोटी सी पृथ्वी बचाओ, यस, बहुत खूब शानू जी, बहुत खूब बहुत खूब। पर्यावरण 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 प्रदूषण, बहुत ही उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जल संरक्षण, यस, जल संरक्षण। सो यहाँ पर एक छोटा सा विषय, एक छोटी सी बात, जरूरी नहीं है कि हम छात्रों को शुरुआत करें, आज का हमारा विषय है प्रदूषण, नहीं, प्रदूषण क्या है उसे बताने की बजाय पहले हम एक ऐसा कोई उदाहरण उसके सामने पेश करें जिससे वो उस विषय की थोड़ी सी गंभीरता को समझ सके। साधारण से बोलचाल वाले वाक्य, साधारण से शब्दावली का प्रयोग करने की आवश्यकता है। बच्चों, आज रास्ते में गुजरते हुए आपने अपने आसपास क्या देखा? कोई बोलेगा सुंदरता देखी, कोई बोलेगा बहुत कचरा था, बदबू आ रही थी, कचरा था, बदबू आ रही थी, क्यों आ रही थी? अनेक प्रश्न है जिसके द्वारा हम बच्चे को उस विषय की ओर मोड़ सकते हैं। ये था एक छोटा सा प्रयास। पढ़ते हैं अपने विषय की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत सारी विधियां बतानी है, इसीलिए मैं स्लाइड्स पे ज्यादा समय जो है वो व्यर्थ नहीं करूंगी। सबसे पहला कौशल है श्रवण कौशल। अब सबसे ज्यादा, जैसे मैं श्रवण कौशल की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सभी यहाँ पर जूम मीटिंग में है, किसी का भी एक माइक अगर अनम्यूट रह जाता है तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। श्रवण कौशल के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वातावरण शांतिमय हो। सबसे पहले आवश्यकता है ठीक प्रकार से सुनना। इसके लिए श्रवण इंद्रियों का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है, शांतिमय वातावरण होना आवश्यक है, और सुनने वाले और वक्ता के शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब हम किसी भी अनुच्छेद को या किसी भी कविता का या किसी भी वाक्य को या किसी भी कहानी को जब हम बोल रहे हैं तो हमारे जो श्रोतागण हैं उस पर ध्यान दें। अवधान से बचाव आवश्यक, किसी भी प्रकार का उनका डिस्ट्रैक्शन जो है, बाधा जो है, वो उसमें नहीं आनी चाहिए। अंतर्बोध शक्ति का होना, अर्थबोध शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये समझना है कि छात्र कौन सा आयु वर्ग का है, उसके अनुसार ही हमारे विषय का चयन होना अत्यंत आवश्यक है। पठन कौशल सभी जानते हैं, स्पष्ट शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शब्द का वाक्य विन्यास सही होना चाहिए, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अनावश्यक नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, अधिकतम अलंकृत शब्दावली का भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बच्चों की मानसिकता को समझना जरूरी है। अब पठन कौशल में बाधाएं कैसे आती हैं? बहुत जल्दी बोलने से बच्चा नहीं समझ पाता। कई बार भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक वातावरण का, उसके आसपास के भूगोल का, उसके आसपास वो कहाँ रहता है, उस परिस्थितियों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कई बार शारीरिक और मानसिक दोष होते हैं। कई बार बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उनकी वाणी में स्पष्टता नहीं होती। सामाजिक वातावरण का प्रभाव, समाज जहां पर वो रहता है, हम देखते हैं कि उत्तर में रहने वाले बच्चों के उच्चारण में, दक्षिण भारत में रहने वाले बच्चों के उच्चारण में
आसपास के समाज का प्रभाव पड़ता है और उच्चारण में प्रभाव दिखाई देता है। अभिव्यक्ति की क्षमताओं का अभाव, कहीं ना कहीं छात्र को अभिव्यक्ति करने का मौका देना अत्यंत आवश्यक है। और कई छात्र जो हैं, यदि वे अभिव्यक्त करने में अक्षम हैं, तो पठन कौशल में बाधा उत्पन्न हो सकती है। वाचन कौशल दो प्रकार, एक सस्वर वाचन, जहां सभी छात्र, हम सभी जो है सस्वर वाचन करते हैं, कविताएं जोर जोर से पढ़ते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जैसे ही रीड करते हैं, पूरी क्लास हमारे साथ जब शुरू हो जाती है, गूंजने लगती है, तो वो माहौल जो है वो बहुत ही अप्रतिम होता है, और वो है सस्वर वाचन। मौन वाचन, जहां शांति से बच्चा बैठकर पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी कहानी, अपनी कविता को पढ़ रहा है। जब वो मुख में, मन में ध्यान से उस अध्याय का वाचन करता है, वो है मौन वाचन। गंभीर वाचन, धीरे धीरे गंभीरता से पढ़ना। अब यहाँ पर विषय वस्तु को निश्चित रूप से याद कर सके, इतनी गंभीरता से पढ़ना। द्रुत मौन वाचन, पहले से ही जब हमें याद होता है विषय, उसके बाद जब हम उसे मन में भी पढ़ते हैं, तो हमें पता है आगे क्या है, तो हम जल्दी 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 उसका पठन करते हैं, उसका वाचन करते हैं। लेखन कौशल सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें कठिनाइयां अनेक आती हैं। प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए यह सबसे मुख्य भाषा कौशल है। यह कठिन कौशल है, इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी संबंधी त्रुटि ना हो, लिखावट सुंदर हो, लिखित समय पर शिरोबद्ध आवश्यक है, और कलम के को अधिकतम 1 इंच से पकड़ना, और पुस्तिका व पेन के बीच 45 डिग्री का कोण जो है वो ध्यान से रखते हुए लिखना। लिखते समय शब्दों एवं वाक्यों का चयन भी, एक वर्णों की संरचना भी महत्वपूर्ण है। अब ये सब हम जानते हैं, ऐसा कुछ भी नया यहाँ पर मैंने नहीं बताया। ये हमारे यहाँ पर मौजूद सभी शिक्षक जो हैं इससे परिचित हैं। पर अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये समझना है, आज की जो पीढ़ी है, आज के जो छात्र हैं, वे बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। पिता की उम्मीदों पर वे खरा उतरना चाहते हैं। दूसरों से पहले इन्हें खुद को जीतना है, दूसरों से पहले इन्हें लक्ष्य को भेदना है। रातों से इन्हें लड़ना पड़ता है, खुद को इन्हें जीतना पड़ता है। संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है, मंजिल ही जीवन का किस्सा है। कलम टूट जाती है, मुश्किलें भी हार जाती हैं। इन विद्यार्थियों के सामने मुसीबतें भी झुक जाती हैं। मुसीबतों को आसानी से झेल लेते हैं, उलझनों को आसानी से सुलझा लेते हैं। विद्यार्थियों का दर्पण पुस्तक है, श्रृंगार इनका विद्या है। आदर्शवादी, चंचलता, सहनशीलता, यही इनका परिधान है। इन विद्यार्थियों की यही पहचान है। इतने मजबूत हैं हौसले, टूट जाए पहाड़ पर नहीं टूटेगा इन विद्यार्थियों का हौसला। संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है, मंजिल ही जीवन का किस्सा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी शिक्षक हैं, वे सभी माता पिता भी हैं। अब माता पिता होने के नाते हम जानते हैं कि आज का हमारा बच्चा, आज का हमारा विद्यार्थी किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमारी अध्ययन शैली, जिस तरीके से हमने पढ़ाई की है, और आज का बच्चा जिसके लिए हर विषय विस्तार से अनेक तरीके से उसके सामने रखा हुआ है, उसके लिए पढ़ना, उसके लिए जो चुनौतियां हैं उनको पार करना, और जो कंपटीशन है आज समाज में, जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें अपने आप को साबित करना, ये हमेशा उसके सामने एक विषय जो है बना रहता है। लेकिन वो हारता नहीं है, वो प्रयत्न कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे कक्षा 9वीं 10वीं के छात्र जिन्हें हिंदी नहीं आती, अगर वो अन्य विषयों में अच्छे हैं, तो वो हिंदी में भी भरसक प्रयास करते हैं कि वे अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। ये है उनकी मेहनत, ये है उनकी मुश्किलें। और ऐसे सभी छात्रों के लिए हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हम नए तरीकों के साथ उनके सामने आए, नई विधियों को अपनाएं, ताकि इन बच्चों तक हम पहुंच सके। एक छोटा सा उदाहरण है आप सभी के सामने, कठपुतली। ये कविता हम सभी ने पढ़ी है। अब इस कविता को जब मुझे पढ़ाने का मौका मिला, तो एक छोटी सी गतिविधि की मैंने कक्षा में। उद्देश्य क्या था? छात्रों से जुड़ना, छात्रों को कुछ नया बताना।
जैसे सबसे पहले मैंने इस कक्षा को 5 अलग भागों में विभक्त कर दिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी कक्षाओं की संख्या जो है कहीं पे 30, कहीं पे 35 हैं बच्चे कक्षा के अंदर। इतने बच्चे 30-25 डिपेंड करता है, कई जगह विद्यालयों में केवल 25 हैं। पहला भाग मैंने कठपुतली की कविता जब उनको पढ़ाई, मैंने उन्हें एक भाग के छात्रों को कहा कि पौराणिक जानकारी संग्रहित कीजिए, दूसरे भाग को कहा कि कठपुतली नृत्य करना है या आपको विज्ञापन बनाना है। तो अगर वह 7 बच्चों का वो ग्रुप है या 7 बच्चों के अंदर 5 बच्चे जो हैं वो नृत्य कर ले और 2 बच्चे विज्ञापन बना ले। तीसरा भाग जो था कठपुतली की उत्पत्ति कैसे हुई, व्यवसाय के रूप में उसकी आज की दशा पर विचार व्यक्त कर। चौथा भाग था कठपुतली के वर्तमान रूप, कठपुतली के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कर। और 5वां भाग था कि स्वतंत्रता और पराधीनता के अंतर को दर्शाते हुए एक नाट्य अभिनय कर। अब यहाँ पर उद्देश्य था कि इस कविता के माध्यम से छात्रों को हर एक विषय की जानकारी हो। कहीं ना कहीं छात्रों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस ये तो इतनी सी कविता है, मुझे पढ़ ली मुझे आ गया। नहीं, इस कविता के द्वारा भी बहुत सारे संदेश थे जो हम उन तक पहुंचा सकते थे। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मैं उनके सामने जब इस प्रकार का मैंने एक गतिविधि रखी, तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर, जो इतिहास रखा गया वो आपके समक्ष है। शारीरिक और मानसिक रूप से किस प्रकार से ये कला जो है पुतली कला कई कलाओं का मिश्रण है। इसमें नाट्य कला, चित्रकला, वेशभूषा, मूर्ति कला, वस्त्र निर्माण कला, रूप सज्जा, संगीत, नृत्य आदि जुड़ा हुआ है। तो कठपुतली जो नृत्य भी करवा रहे हैं, जो ये कला है वो कितनी मतलब वो आसान नहीं है, उसमें कितना कुछ जुड़ा है, कितनी मेहनत है उसके पश्चात। धागा पुतली क्या है, छाया पुतली क्या है, दस्ताना पुतली क्या है। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में एक रांचो करके हम लोगों ने हाथ में वो दस्ताना डाले हुए वह हमें दूरदर्शन के ऊपर दिखाई देता था। तो ये भी एक कला है। अब इसके द्वारा छात्रों ने बहुत कुछ हमारे सामने रखा, नाट्य अभिनय किया। और नाट्य अभिनय कर रहे हैं, नृत्य जब वो कर रहे हैं, तो कठपुतली की तरह जब नाचना है तो वो आसान नहीं है, और दूसरों के इशारों पर नाचना भी आसान नहीं। जहां हम इस प्रकार से छोटी सी कविता को भी जब हम अलग तरीके से छात्रों के सामने पेश करते हैं, उसके इतिहास से परिचित करवाया। आप उसके इतिहास से परिचित करवाने के बाद उन्हें ये बताया गया कि आज हमारा ये जो हुनर है, ये जो कला है, वो कितनी खतरे में है। तो कैसे हम अपनी ही संस्कृति का संवर्धन कर सकते हैं, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी इस कला को बचा सके, कैसे हमें नाज होना चाहिए अपनी इस संस्कृति पर। और छोटे छोटे बच्चों ने ये जो प्रयास किया है, उनकी तारीफ करना, उनकी प्रशंसा करना, तुम्हारे विचार उत्तम थे, आपकी तरफ से एक छोटा सा लिखा हुआ संदेश बच्चे के मन में वो विश्वास भर देता है कि वह अनेक कार्य जो है उसे हिंदी से प्रेम हो जाएगा। वह खुद होकर अनेक प्रकार की विधियां लेकर हमारे सामने आएगा। आप सभी को इस प्रकार की गतिविधि कैसी लगी? चलिए अब हम जुड़ते हैं चैट बॉक्स से। बहुत बहुत धन्यवाद एकता, मुस्कान धन्यवाद, सुभाष जी धन्यवाद, वर्षा धन्यवाद, वीनू जी, अर्चना जी, प्रमिला जी। ये बहुत फास्ट जा रहा है, क्षमा कीजिए यदि मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। रत्न, संध्या जी, अंजना शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंफॉर्मेटिव, थैंक यू प्रीति। पूर्वी घोष, अनोखा प्रयोग, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। आप अभी मैं चित्रा सी मैम से भी निवेदन करूंगी कि बीच में हम खोलें, और आप शिक्षक जो हैं आप भी बहुत प्रकार की गतिविधियां करते हैं। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ उन गतिविधियों को एक रूप में एकीकृत करके आपके समक्ष रख रही हूँ, लेकिन आप सभी इन सभी गतिविधियों को अपनी कक्षाओं में अंजाम देते हैं, और इससे कहीं ज्यादा बेहतरीन गतिविधियां जो हैं आप कक्षा में करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सपना जी बहुत बहुत धन्यवाद, रोमा जी थैंक यू। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक, थैंक यू सो मच मैम।
बच्चों में जागृति आएगी। यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। यही था, छोटी सी बात है। स्वतंत्रता परतंत्रता का अंतर, दूसरों के अधीन जब हम कार्य करना पड़ता है तो कौन से बंधन होते हैं। बहुत आसानी से बच्चा खुद बोलेगा जो आप उसे सिखाना चाहते हैं, जो उद्देश्य हम कविता का उसके सामने रखना चाहते हैं, बच्चा खुद हमें बताएगा और बहुत गहराई में बताएगा। और ये ज्ञान स्थायी ज्ञान है, इसे हम नहीं बदल सकते। कोई पुस्तकी ज्ञान इसके सामने काम नहीं करता, जो उनके अंतर्मन तक पहुंच जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक कौशल को अलग अलग तरीके से कैसे हम रख सकते हैं, ये आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। सबसे पहले वाचन कौशल। वाचन मतलब बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको छोटे छोटे विषय दिए जाएं और वो बोलें कक्षा में। व्यक्ति की जीवनी, छात्रों को एक व्यक्ति की जीवनी बोलने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें उस व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को साझा करना है। आप कोई भी व्यक्तित्व लीजिए, किसी की भी जीवनी सी, आप जब अपना लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान में आने वाले महीनों के हिसाब से आप सोच लीजिए, चलिए अगस्त बीत गया है, अब आ गया है सितंबर। अब सितंबर में क्या क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दीजिए छात्रों को जीवनी पढ़ने के लिए और उन्हें बोलिए कि अब आपको उनके बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है आपको बताना है। हर बच्चे का कहते हैं ना, जो संदर्भ होगा जहां से उसने वो कविता या उनके विषय में जो जानकारी है जो प्राप्त की होगी, उसका तरीका बताने का अलग होगा और बच्चे ध्यान से सुनते हैं। वाद विवाद, विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर वाद विवाद करने के लिए कहें, इससे भाषा कौशल और तर्क शक्ति में सुधार होता है। सुनो और चित्र बनाओ, ये बहुत ही अच्छी गतिविधि है कि आपने कहानी सुनाई कक्षा में, कहानी समाप्त होने के बाद आपको पता है कि आपकी कक्षा में कौन सा बच्चा है जिसकी जो चित्रकला में निपुण है, उसे बोलिए चल आ जाओ बच्चा, अब आपको यहाँ पर खड़े होना है। इसी कहानी का जो सबसे प्रिय दृश्य है, जो आपको सबसे अच्छा क्षण लगा या सबसे अच्छी जो घटना लगी या जो अच्छा भाग लग रहा है, चलो अब आपके मित्र जो यहाँ कक्षा में बैठे हैं वो आपको बताएंगे और आपको उसके आधार पर चित्र बनाना है। तो हम सभी मिलकर इस कार्य को करने का प्रयास करें। यहाँ से एक एक मित्र जो है वो बताएगा कि इस कहानी में ये भी कर दो, इस घटना में तुम यहाँ पर ये बना दो, ये कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, चलो उसके ऊपर एक टाइटल डाल दो, उसके ऊपर ऐसा कर दो, उसको बॉर्डर बना दो, उसमें ये ऐड कर दो। ऐसा करके पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ 10 मिनट में बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जब एक एक बच्चा बता रहा है, वो बच्चा वो बता रहा है जो वो कहानी में समझ चुका है। अब इससे उनका वर्णन कौशल भी बढ़ता है और विचारशीलता भी बढ़ती है। मिनी टॉक शो, ये बहुत अच्छा है। आप अपनी कक्षा में जैसे ही प्रवेश करते हैं, आपकी कक्षा में 35 बच्चे हैं, आप 35 विषय लिख लीजिए और कक्षा के मतलब महीने की शुरुआत में हर एक बच्चे को दे दीजिए, बच्चा इस महीने में आपका विषय ये है। एक एक करके हमने दे दिया। जैसे ही आप कक्षा में प्रवेश करोगे, बच्चा आएगा और वह एक विषय जो आपने उसे दिया है, छोटा सा जो विषय दिया है, मनपसंद विषय जो आपको पता है कि ये बच्चों की इच्छाएं क्या है, तो जो आप चाहते हैं उसमें उन बच्चों की आयु को ध्यान में रखते हुए विषय डाल दीजिए और बच्चा एक एक करके बच्चा जो है वो बताएगा। कहानी सुनाने की प्रक्रिया, छात्रों को एक कहानी सुनाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कही, जिसमें एक ही कहानी को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बयां करना होता है। क्या है, एक ही कहानी को, जैसे हमने कहानी पढ़ी, अब उसी कहानी को शुरुआत करेगा एक बच्चा, उसे आगे बढ़ाएगा, फिर आगे बढ़ाएगा, ऐसे करते करते पूरी कक्षा के छात्रों को ये मौका भी मिलता है और वे अपनी कहानी को बयां भी कर पाते हैं। अभिनय करने या भूमिका निभाना, ये बहुत जरूरी है। हम लोग अभिनय तो छात्रों से करवाते हैं। कई बार हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ऐतिहासिक पात्र, अब हमने अभी उदाहरण दिया रानी लक्ष्मीबाई का, आप उन्हें बताइए, उन्हें अभिनय करने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चा जब कक्षा के समक्ष आ रहा है, उसे शर्म नहीं आनी चाहिए, वो विश्वास हमें उसके अंदर भरने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कहाँ इतना समय है, करिकुलम करना है, पोर्शन करना है, नहीं। यदि हम अपने लेसन प्लान को
5 मिनट ऐसे कार्य के लिए देते हैं, उस बच्चे का मनोबल बढ़ेगा। हमारी कक्षा की जो विशेषताएं हैं वो हम जानते हैं, कौन कला में अच्छा है, कौन बोलने में अच्छा है, कौन अभिनय अच्छा करता है। उन्हें कहिए कि कल हम बच्चा ये कविता पढ़ेंगे और ये रानी लक्ष्मीबाई है, तो हम रानी लक्ष्मीबाई आप बनिए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उससे शुरुआत करवाइए। जिस तरीके से वो बच्चा, अब वो भूमिका में जा रहा है, वो देखेगा कैसे बोलती हैं, कैसे खड़ी होती हैं, खुद ब खुद आपने आधी जंग जीत ली। बच्चे खुद ब खुद आपकी हर बात को सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि अब आगे की बात आप उन्हें बता रहे हैं। विभिन्न विषयों पर उन्हें बोलने दीजिए। विभिन्न विषयों पर उनकी पसंदीदा पुस्तकें, उन्होंने आज आते हुए क्या किया। बहुत छोटे छोटे विषय हैं। चंद्रयान, अब बच्चा चंद्रयान, ऐसा नहीं है कि ये बड़े बच्चे ही, हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी चंद्रयान की पूरी जानकारी हासिल कर चुका है। वो बच्चा सब कुछ जानता है। हो सकता है कक्षा के कुछ विद्यार्थी ना जानते हो, लेकिन ऐसे प्रयास जब हम करते हैं, हो सकता है उसकी जानकारी में कुछ गलतियां हो, वो हम सुधारेंगे, बट हमने उसे मंच दिया बोलने का। विवरण या स्पष्टीकरण वीडियो, विद्यार्थियों को एक विषय को समझाने के लिए एक विवरण या स्पष्टीकरण वीडियो बनाने के लिए कहें, जिसमें वे विशेष वी ऑल नो दिस, हम सभी जानते हैं हमारे बच्चे आज तकनीक को ना, उनको मतलब उनके हाथों का, बाएं हाथ का खेल है, वो बड़ी आसानी से वो वीडियो बना लेते हैं, बड़ी आसानी से वो गाने जोड़ लेते हैं और सही गाना जोड़ते हैं। तो क्यों ना हम इस कला का प्रयोग करें, और इस कला में सभी निपुण हैं। तो इस कला में अगर हम वो निपुण हैं, तो हम स्वयं अपने लिए, बोलते हैं ना, रिसोर्सेज वी आर लुकिंग आउट। रिसोर्सेज देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो खजाना है। तो इन बच्चों की इन कलाओं का प्रयोग करें, विवरण दीजिए। चलिए, हम पर्यावरण प्रदूषण पर बात करने वाले हैं। अब विशेषज्ञ के रूप में हमने कक्षा में एक टीम बना दी। एक बच्चा स्लाइड्स बना रहा है, दूसरा बच्चा उसमें वॉइस ओवर का काम कर रहा है, तीसरा बच्चा उसमें अपने अनुभव डाल रहा है, कोई पिक्चर्स कलेक्ट कर रहा है। टीम वर्क सिखाया हमने, बच्चों को एकजुट होकर काम करना सिखाया। और जब उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के कक्षा के, उन्हीं के मित्र जब उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वास छात्रों में भर देता है। सुनाया गया गीत या कविता, अब हम सभी जानते हैं कि जब हम कविता को प्रस्तुत करते हैं, तो जो कविता हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या उस कविता के भाव हमारे बच्चे के अंतर्मन को छू रहे हैं। अब भिक्षुक कविता जब हम पढ़ते हैं, भिक्षुक कविता पढ़कर जहां वो अंतिम चरण में वो कहते हैं कि अब पराकाष्ठा ये थी कि ये बच्चे जिन्हें दाता भाग्य विधाता से कुछ नहीं मिला, और वो जूठी पतले जो रास्ते पर लोगों ने खाकर फेंक दी है, उसे चाटने के लिए वे विवश हैं। यदि हमारे बच्चे के मन की संवेदनाएं नहीं जागी, मतलब हम अपनी उस कविता के संदेश को वहां तक नहीं पहुंचा पाए। खूनी हस्ताक्षर, जोश नहीं है, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम में। क्या क्या कर सकते हैं हम अपने बच्चों के मन में वो देशभक्ति जगाने के लिए, वो देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देशभक्ति की भावना बोलकर नहीं जगाई जा सकती, उन्हें उन कर्तव्यों का उनके व्यवहार में लाना आवश्यक है। कक्षा में आप प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा भी, जैसे ही आपकी रिसेस होती है, उसके बाद हम देखते हैं कक्षा में कई जगह यहाँ वहां बच्चे कुछ कुछ फेंक देते हैं, थोड़ी सी गंदी हो जाती है। बड़े प्यार से उन्हें कहिए, देखो बच्चों, यहाँ पर 3 डस्टबिन पड़े हुए हैं, चलो आ जाओ, हम इसको उठाएंगे जो जो कचरा है, और चलो इसको थ्रो करेंगे। उठाओ और थ्रो करो, उठाओ और थ्रो करो, बच्चा खुशी खुशी करेगा और क्लास साफ हो जाएगी, और बच्चा जान जाएगा कौन सी चीज कौन से बिन में डालनी है। वो गलती नहीं करेगा, वो पर्यावरण के प्रति सचेत होगा। जो हम बाहर सिखाना चाहते हैं, छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा हम कक्षा में उसे नियम के रूप में लागू कर सकते हैं। कहानी सुनने का खेल, ओहो हो, चित्रा मैम जी यहाँ पर है। कहानी सुनना अपने आप में एक बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत बड़ा वरदान है। कहानी शुरू हो और आप खो ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कहानी में भी हम खेल डाल सकते हैं। एक कहानी का आयोजन करें जिसमें हर खिलाड़ी को एक एक किस्सा सुनाना होता है, और उस किस्से को अपने तरीके से सुनाना होता है, अपने अंदाज में। कोई, अब आप अलग अलग भाव जो है, आप कोई खुशी से बताए, कोई दुख बताए,
और अलग अलग अंदाज में उसे कोशिश करे कि वह उसे प्रस्तुत करे। व्यक्तिगत प्रस्तावना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के जमाने में जब बच्चा सामने खड़ा हो, वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो क्या करें हम उसे? चलो बच्चों, हम उसे ये कहेंगे ना, बेटा आपको अभी आप खड़े हो जाओगे, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, व्यक्तिगत प्रस्तावना दोगे, वो घबरा जाएगा। हम उसे ये कहेंगे कि चलिए आप आज हम ये बताएंगे, आज के हम 15 मिनट हम ये करने वाले हैं कि आप अपनी सब में टैलेंट है, अब आप अपने इस सामर्थ्य को प्रस्तुत करेंगे। चलिए आप बताओ बच्चे, आपके सपनों की दुकान कैसी होगी? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपका प्रिय अभिनेता कौन सा है? आपका प्रिय खिलाड़ी कौन सा है? और वो खिलाड़ी अगर प्रिय है तो क्यों? ऐसे कौन से गुण हैं जिसे आपने उसमें, उन गुणों को आपने देखा? लेकिन बताने से पहले उसे ये कहिए कि चल, अब आपने जानकारी तो मुझे दे दी, अब अगर आप वो स्वयं खिलाड़ी हैं या अभिनेता हैं तो आप बात कैसे करोगे? जो अपने सपनों की दुकान की बात कर रहा है, अब वो सपनों की दुकान क्या क्या होगा, और आप अपनी उस दुकान के बारे में लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचाएंगे? चलो बेटा इस पर चर्चा करते हैं। बच्चा सकारात्मक सोचे, बच्चा उसी दिशा में सोचेगा और आगे बढ़ेगा। पैनल चर्चा बहुत बढ़िया, मतलब अब इसमें जैसे आप विज्ञान के चमत्कारों पर बात कर सकते हैं, पर्यावरण पर बात कर सकते हैं, मंचवाद, विद्यार्थियों को एक विशिष्ट मंच पर एक विषय पर विवाद करने के लिए हम कि क्या डिजिटल पुस्तकें जो हैं वो प्रिंट पुस्तकों को बदल सकती हैं, पक्ष में विपक्ष में खड़ा कर दिया हमने और कहा अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम कक्षा में मंच विवाद में सबसे ज्यादा शोध होता है, लेकिन यदि हम उन्हें नियमों से अवगत करा दें तो ये बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक भी होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे निर्देश छात्रों तक सही रूप में पहुंचे, तो बच्चे जो है सबसे ज्यादा अच्छा मंचवाद जो है करने में सफल होते हैं। बच्चों के साथ बोलना, उन्हें संवाद कौशल तब जागेगा जब हम उनसे, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ उन्हें बोलने के लिए कहिए। यहाँ पर मैं एक अपना अनुभव साझा करना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय में जब कक्षा जूनियर केजी सीनियर केजी के जब छात्र पहली बार जब विद्यालय में आते हैं, वो रोते हैं क्योंकि माँ का हाथ छोड़कर आ रहे हैं, पहली बार बड़ी बड़ी इमारतें और इतने सारे और इतने अनजान लोगों के बीच में वो आ रहे हैं। तो हमारे विद्यालय में गतिविधि क्या थी कि कक्षा चौथी के छात्र नीचे उतरेंगे जिस दिन ये बच्चे पहली बार आ रहे हैं, और कक्षा चौथी के छात्र सभी खड़े हैं, एक एक छात्र एक एक बच्चे का हाथ पकड़ के उससे बात करता हुआ, प्यार से उसे विश्वास दिलाता हुआ उसकी कक्षा में ले जाएगा। अब ये क्या सीखा बच्चे ने? छोटे बच्चों के साथ संवाद करना, कितना आदर, कितना प्यार, कितना उसको समझना, कितना धैर्य, बहुत कुछ गुण वो अपने आप में सीख गया जो हम उनसे सिखाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी गतिविधि थी, और ये बच्चे जो हैं जब बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरी अपनी छोटी बच्ची ने ऐसा किया था, तो वो आज भी उस पल को याद करती है कि कैसे वो छोटे से बच्चे ने मेरा जोर से हाथ पकड़ लिया और फिर उसने मुझे ये बताया मम्मा जा रही है, मुझे नहीं जाना है, तो मैंने कैसे उसे विश्वास दिलाया और कक्षा तक लेकर गया। बहुत अच्छा अनुभव है, और बच्चे जो हैं इससे जब जुड़ते हैं तो ये बहुत ही दिल को छू जाता है। चलिए, वाचन कौशल में हमने बहुत कुछ देख लिया, छोटे छोटे विषयों पर हम दैनिक चर्चा कर सकते हैं। बच्चे का वह शौक जिस पर उसे गर्व है वो बता सकता है। 1 मिनट, 1 मिनट में वह बोले। सबसे बड़ी बात, फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं, इधर सुनो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, हमें उससे कोई मतलब, हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रोक भी नहीं सकते। बच्चे जा रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें वो बहुत अच्छी जो है वह जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसी कौन सी अच्छी जानकारी है जिसे आप दूसरों के साथ साझा करना चाहोगे? आप कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, किसके साथ गए, बोलने दीजिए। कहानी की लड़ी, एक विषय दीजिए और कहानी हर बच्चे को कहिए चलो अब हमें इस कहानी को पूरा करना है। एक एक सेंटेंस बच्चा बोलेगा। एक राजा था, दूसरा बच्चा बोलेगा, उसकी एक रानी थी, तीसरा बच्चा, और ऐसे करते 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 35 बच्चों तक हम उसे घुमाते हुए अंत में हम उसे कहेंगे कि ये हमारा संदेश होना चाहिए बेटा। तो उस आधार पर आपको उस कहानी को मोड़ देना है, उसमें आपको संवाद डालना है, संवाद लेखन। अब उसमें रोचकता डालनी है। मजा नहीं आ रहा, बच्चा
थोड़ा सा और सोचो, अब हम इसमें रोचकता कैसे ला सकते हैं, क्या यहाँ वाक्य बदला जा सकता है? बच्चा सोचेगा और कहानी को आगे बढ़ाएगा। आपके और आपके मित्र में कौन कौन सी बातें जो है वो समान है, बहुत अच्छा विषय है। सच्ची मित्रता, सच्ची मित्रता पर अनुच्छेद लिखने की बजाय हम अपनी कक्षा में हमारे जो छात्र हैं वो अपने मित्र को किस हद तक जानते हैं, उनमें क्या समानताएं हैं, उनमें कौन से गुण हैं, वो अपने मित्र की कौन सी कमियों को बिना उसे बताए दूर कर देते हैं। यदि हम ऐसे छोटा सा प्रयास करते हैं तो वे छात्र बहुत कुछ लिख पाएंगे सच्ची मित्रता के ऊपर। अवकाश योजना, बहुत अच्छा, हर बच्चा जाना चाहता है छुट्टियों पर। जैसे ही ग्रीष्म अवकाश आने वाला है, शीत अवकाश आने वाला है, क्या योजना बनाई आपने? बोलने दीजिए उन्हें, बड़े खुशी से वो बताते हैं कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, क्या करेंगे, क्या देखेंगे। साक्षात्कार, ये बहुत अच्छा परियोजना है। साक्षात्कार, आप अपने आसपास के सेवकों का, कर्मचारियों का, मित्रों का, उन्हें प्रश्नावली तैयार करके दीजिए ताकि वो दिशा जो है वह भटके ना। आपका उद्देश्य क्या है कि छात्र हमारे आसपास जो इतने निष्ठावान जो कार्यकर्ता हैं उनके कार्यों का सम्मान करें। तो उनकी आप प्रश्नावली दे दीजिए और उन्हें कहिए आपको साक्षात्कार बच्चा उनका लेना है, और आप उनका साक्षात्कार लेकर आप कक्षा में आकर बताएंगे कि जब आप उनसे बात कर रहे थे, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, उन वहां पर उन सेवकों की पीड़ा को महसूस कर पाते हैं। जब हम अपने विद्यार्थियों को प्रयोजना के लिए कभी अनाथ आश्रम लेकर जाते हैं, कभी हम उन्हें वृद्धाश्रम लेकर जाते हैं, क्या बताना है हमारा उद्देश्य? उनका दर्द। ये दर्द वहां जाने की, अगर हम सभी छात्र नहीं जा सकते क्योंकि आपके बंधन है, आप इतने ही बच्चों को भेज सकते हैं, तो और क्या है जैसे हम बच्चों को समाज सेवा के लिए आगे बढ़ावा दें, उन्हें उस तरफ अग्रसर करें। ये छोटे छोटे कार्यों के द्वारा जहां बच्चा साक्षात्कार लेगा वो जानेगा कि मैं साक्षात्कार ले रहा हूं तो मेरी भाषावली कैसी होनी चाहिए, मैं उनके अनुभवों को सुनूं। आप उन्हें इतना महत्व दे रहे हैं कि आप उनकी हर बात को यहाँ पर लिख रहे हैं, और फिर आप अपने विचारों में यहाँ पर जब सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपका उनके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। कार्य जो आप करना चाहते हैं, हर बच्चा बहुत कुछ बोलना चाहता है इसके ऊपर, कभी मौका ही नहीं मिलता। ये तो हम बचपन में खेलते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग, क्यों ना हम इसे अपने हिंदी में जोड़ें। किसी एक वर्ण को आधार बनाइए और चलिए आज आप स्थान का नाम, पशु का नाम, वस्तु का नाम, खेल का नाम डालिए, खाने का नाम डालिए। छोटी कक्षाओं में ये बच्चे जो है कितनी आसानी से आपकी जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा सब कुछ जानेगा। शब्द कार्ड, ये हम सभी जानते हैं, हम कार्ड्स बनाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए, कार्ड्स बनाते हैं, कक्षा में रखते हैं, मिक्स कर देते हैं और बच्चों को बोलते हैं आइए और छांटिए। तो ये सभी जो है, और छांटे और आकर बनाकर शब्दों को वो बोले, बोलने के लिए महत्व देना है। हॉट सीट, सब बच्चे बहुत ज्यादा अमिताभ बच्चन के फैन है। हॉट सीट पर बैठे हुए जैसे वो प्रश्न करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, बनाइए बच्चे को हॉट सीट पे बिठाइए, चल बच्चा कल आज हमारी ये कहानी, जब रिवीजन के टाइम पे दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आप उसे खड़ा कर दीजिए, आप उसको बिठाइए कि अब आपको आपकी कक्षा के सभी छात्र जो हैं प्रश्न करेंगे और आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपकी कक्षा का रिवीजन हो रहा है, बच्चा आत्म सम्मान से फूला नहीं समा रहा, और हर बच्चा उस हॉट सीट पे बैठने के लिए तैयार है। हर बच्चा, हर छात्र जो है वो वहां पर बैठकर अपने सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। अगली बार आप एक चाहेंगे 10 बच्चे रेडी होंगे। तो ऐसा विश्वास जो है हम छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा छात्रों में भर सकते हैं। एक ये कारक चिन्ह हम सभी पढ़ाते हैं, कारक क्या है, हर एक का पढ़ाने का अंदाज जो है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर चित्रा मैम जी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग मुझे ये बताएं कि इसे कैसे करते हैं, कारक चिन्ह पढ़ाने का अलग अलग तरीका। अगर आप अनम्यूट कर सके तो एक दो प्रतिक्रियाएं मैं चाहूंगी, एक दो आप लोग हाथ खड़े कर सकते हैं, और यदि आप बताएं तो हम आपको परमिशन दे पाएंगे। हैंड रेज कर सकते हैं आप, वर्चुअल हैंड आप रेज लोग कर हैंड रेज सकते हैं। कीजिए। कारक चिन्ह मतलब हर शिक्षक जो है कारक चिन्ह जो है अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कोई भी जो अपने विचार यहाँ पर, बीच में आपका ध्यान, मैम इसी बीच में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि एक जी मैम, शिक्षिका है, वो चाहती है कि आप टॉक शो के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। अवश्य मैम, अवश्य।
स्वाति पंडित। स्वाति जी मैम। पंडित जी अनम्यूट करिए प्लीज, कैमरा ऑन करिए मैम। हेलो मैम, जी am I audible? यस मैम। मैम, मैं अपनी कक्षा में कारक चिन्ह पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो एक कविता के माध्यम से उनको कारक चिन्ह याद करवाती हूँ। जैसे कि कर्ता नेको कर्म है, करण द्वारा मान, अपादान से अलग हुआ के लिए संप्रदान, अधिकरण में पर संबंध काके की को जान, संबोधन है अरे करे कारक का सम्मान। इस तरह से उनको सारे कारक चिन्ह याद हो जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए थैंक अब यू मैं, मैम, थैंक यू। जी मैम जी। विजेता जी जी मैम। विजेता मैम, हाँ मैम जी मैम। बताइए। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैम। जी मैम, मैं कारक जब भी पढ़ाती हूँ अपनी कक्षा में, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि बच्चों को समझने में दिक्कत होती ही है, तो मैं उनको उन्हीं के जीवन के कुछ उदाहरण देती हूँ या फिर उन्हीं से कहती हूँ आप कोई वाक्य बोलिए, और फिर उसमें मैं उन्हें कारक को जोड़कर उनको पढ़ाया करती हूँ। तो वो अपने ही जीवन के जब उदाहरण देते हैं और उनमें से वो कारक को खुद ही ढूंढकर खुद ही वो मुझे फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, जहां पर कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो उनको मैं उन्हें समझा देती हूँ। बहुत बढ़िया। इस तरह मैं उन्हें कारक समझाती हूँ, तो वो जल्दी, मतलब अक्सर ऐसा देखा है मैंने कि बहुत जल्दी उनको वो समझ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए हम आगे थैंक यू बढ़ते मैम। हैं। मैं हमेशा मतलब ऐसे छोटी से एक प्रयास किया था। अभी अगर आप देखेंगे कर्ता कर्म करण, तो 3 क आ गए। तो 3 क स अ स अ स। अगर आप देखेंगे कर्ता कर्म करण, फिर संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। सो 3 क स अ स अ स। अब इधर आ जाते हैं विभक्ति चिन्ह की तरफ। ने कोसे का के की में पर बिंदी लगाने की, अरे हिंदी भाषा भारत की। ऐसा करके छोटा सा गीत 2 लाइन में, और बच्चा जो है वह याद करता है। अब तुरंत बच्चा पूछेगा मैम यहाँ भी को है, यहाँ भी को है, यहाँ से है, यहाँ से, इसका अंतर। वही हमारा उद्देश्य होता है, हम तुरंत बच्चे को अंतर बताते हैं और बच्चा उसे याद रखता है। और जैसे ही कक्षा में प्रवेश करो, बच्चे इसे गाते हैं तो उन्हें याद रहता है कि इसके क्रम क्या है, उस क्रम को भी वह भूलता नहीं है। ये विभिन्न विषय हैं जिसके ऊपर हम वाचन गतिविधि कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं श्रवण की ओर। ये बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि बच्चे जो हैं श्रवण कौशल कैसे करें, कैसी गतिविधियां करें, क्या क्या करें। तो आज तो हम भाग्यशाली हैं कि ऑडियो स्टोरी बुक्स बना सकते हैं बच्चे, पॉडकास्ट चर्चा कर सकते हैं, सुनने की गतिविधियां खेलों के रूप में हम बच्चों के समक्ष रख सकते हैं, सुने गए किस्से या रेडियो ड्रामा का नाटक, अब इसका भी बच्चे जो है वह प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। सुने गए भाषणों का विश्लेषण, ये बहुत जरूरी है कि जो महत्वपूर्ण भाषण है, जो हम चाहते हैं हमारा बच्चा, हमारे छात्र जो है वो सुने, अब उसको सुनने के बाद वो उसका विश्लेषण करे कि क्या उन्हें समझ में आया। सुने गए गीतों के बोलों का अध्ययन, गाने के बोलों को सुनने और उनके माध्यम से कविता लेखन और विचार व्यक्त करने के लिए कहें। हर मतलब कहते हैं ना, हर कक्षा में देशभक्ति के ऊपर कविता है, वर्षा के ऊपर कविताएं हैं। तो अब वर्षा ऋतु का जब आप वर्णन कर रहे हैं, कुछ शब्द आप उन्हें दीजिए, और कुछ शब्द देने के बाद उन्हें कहते हैं कि बच्चा चलो अब आपको सुनना है ये गीत जो है। एक कविता तो हमने पढ़ ली, अब इस कविता को पढ़ने के बाद एक कविता और है, ये मैं पढ़ रही हूँ, और अब आप मुझे बताइए कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। बच्चा ध्यान से सुनेगा। अंतरराष्ट्रीय खबर सुने। छात्रों को हमें प्रेरित करना चाहिए कि समाचार, जो दैनिक समाचार हैं और आसपास देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी होनी हो। एक हेडलाइन बस, एक प्रमुख हेडलाइन भी यदि वो, मुख्य बिंदु भी यदि वो कक्षा में आकर बोलता है, तो सभी का ध्यान इसके ऊपर बढ़ता है और उसका सामान्य ज्ञान बढ़ता है। सरकारी योजनाओं, हमारा देश जो है अनेक नई नई योजनाओं के साथ आ रहा है। सो क्या हमारे छात्र जो हैं वह सरकारी योजनाओं के बारे में हम उन्हें बताएं, वो उन्हें सुने और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वे साझा करें। ऑडियो बुक क्लब, ये जो है अब हमारे विद्यालयों में, सभी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब्स हैं, तो क्यों ना वहां पर एक छोटा सा ऑडियो क्लब बनाया जाए, जहां पर बच्चों के पास आजकल तो बहुत ही आसानी से हेडफोन्स उपलब्ध हैं, वो वहां पर जाएं
छोटे छोटे आप वहां पे मतलब एक फोल्डर बनाया है, वहां पे बच्चा जा रहा है, सुन रहा है, और सुनने के बाद एक छोटी सी वर्कशीट जो है, छोटा सा एक प्रश्न भी यदि हम उन्हें देते हैं तो वो उसको पढ़े और उसके ऊपर कक्षा में चर्चा करें। श्रवण स्टेशन, जैसे मैंने अभी कहा कि उसमें साक्षात्कार हम ले सकते हैं, पॉडकास्ट ले सकते हैं, शैक्षिक ऑडियो क्लिपिंग्स जो हैं वो ले सकते हैं, और छात्र वहां पर जाए, उन्हें सुने और कक्षा में बाकियों को सुनाए। हम सभी जो हैं, जब वो कक्षाओं में, साइमन इंग्लिश में बहुत फेमस गेम है ये, साइमन सेज दिस, साइमन सेज टच योर फीट, साइमन सेज पुल योर हेड्स, तो इसी में आप अपनी कहानी को भी ऐड कर सकते हो। साइमन ने कहा पुस्तकें निकालिए, साइमन ने कहा कविता बोलिए, साइमन ने कहा लिखना शुरू कीजिए। बच्चों को एनर्जी आनी चाहिए कक्षा में, ये करना है, वो करना है। ट्विस्ट, जो कहानी आप सुना रहे हैं, आओ ट्विस्ट करें। आप अब उसमें बच्चों को प्रेरित करें कि जो कहानी हमने पढ़ी है, चलो अब आप ये सोचिए, अगर ये कहानी का, कई बार बच्चे प्रसन्न नहीं होते ना, इसका अंत अच्छा नहीं हुआ, तो अब हम क्या चाहते हैं, हम उसे किस रूप में, नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं इस गतिविधि में, अगर आपको, मतलब आपको कहा जाए, तो आप इसका अंत कैसा करना चाहोगे। कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत करने, अप्रत्याशित तत्वों की पहचान करने के लिए हमें छात्रों को आगे प्रेरित करना चाहिए। ईमेल विनिमय, हम सभी जो है ईमेल राइटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, कक्षा, हमारे पाठ्यक्रम में भी ईमेल राइटिंग है, तो क्या हम अपने छात्रों को अन्य स्कूलों के या अन्य क्षेत्र, किसी भी आसपास के क्षेत्र के दोस्तों से क्या संपर्क करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, विभिन्न संस्कृतियों के छात्र जो हैं, जब आपस में ईमेल का आदान प्रदान करेंगे तो वे संस्कृति से जुड़ेंगे, वे उनके विद्यालयों की विशेषताओं से जुड़ेंगे। जब वो बच्चा ईमेल लिखेगा तो वो अपने विद्यालय को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो कुछ अनुचित नहीं लिखेगा। और इससे क्या होगा, लिखित संचार कौशल, मतलब लिखित जो उसकी भाषा कौशल है, वह भी आगे बढ़ सकती है और बच्चा कार्य करने में सक्षम होगा। अब यहाँ पर हूबहू कहानी कथन, ये एक गतिविधि भी हम कर सकते हैं बच्चों के साथ, कि जैसी आपकी शिक्षिका, जिस प्रकार से शिक्षिका के हाव भाव हैं, जिस प्रकार से शिक्षिका आरोह अवरोह का प्रयोग कर रही है, उन्हीं को हूबहू कहानी में आप भी कहिए, कहने का प्रयास कीजिए। बच्चा जानेगा भावों को। संगीत कुर्सियां, म्यूजिकल चेयर, क्यों ना हम कक्षा में खेलें। अब कक्षा में शोर होगा, बच्चों को नीचे लेकर जाइए। 10 कुर्सियां अगर हम वहां पर रखते हैं, प्रश्नों का, एक बच्चा जो है वह प्रश्न बोल रहा है, जैसे उत्तर मिला बच्चे बैठ जाएंगे। सुनो और फेंको मैंने पहले ही कर दिया। भिन्नार्थक शब्द, ऑडियो बुक, मूवी शब्दावली सूची, बहुत कई हमारी ऐसी मूवीज है, यहाँ पर मैं फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ, ये ऐसी मूवीज हैं, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो हमें सही में बच्चों को दिखानी चाहिए। अब उनकी शब्दावली बनाई और बच्चों में बांटिए ताकि उनका श्रवण कौशल बढ़े। दूरभाष, टेलीफोन, एक बच्चा एक वाक्य कहेगा और वो पूरा घूमते घूमते अंत में उस बच्चे ने क्या कहा वो बताएगा। तो कैसे वो संदेश कितना परिवर्तित हो जाता है यदि हम ध्यान न दें। आपका उदाहरण बच्चों के समक्ष, चरण दर चरण। अब जैसे आपको पूरा मानचित्र मैप बताना है, आपको यहाँ से वहां पहुंचना है, आपका मित्र जो है यहाँ से इस क्षेत्र में जाना चाहता है, चलो बच्चा बताओ कैसे पहुंचेगा, उसके दाहिने क्या आएगा, बाहिने क्या आएगा, किधर से मुड़ना है। व्यंजन बनाने की विधि, कार्यक्रम की रूपरेखा, कोई कार्यक्रम आयोजित करना है, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। जन्मदिन की योजना, आपका जन्मदिन आ रहा है, योजना बनाते हैं, चलो। अब इससे क्या होगा, बच्चा हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से लिखने, सुनने और बोलने में माहिर होता है। भले ही छोटी सी बात है, लेकिन बच्चा कार्यक्रम की रूपरेखा, मैं ये नहीं भूल सकता, ये होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें भविष्य में आवश्यक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम नहीं पढ़ पाते। ये बहुत सारे लिंक्स हैं ऑडियो बुक्स के, बहुत सारी 101 हिंदी कहानियां हैं जो बच्चे सुन सकते हैं। गूगल प्ले पे ऑडियो बुक्स हैं जिसके लिंक्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। ये है हमारी हिंदी की पंचतंत्र की कहानियां, ये इसका लिंक है। इसमें अकबर बीरबल की कहानियां हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के 108 रामायण की कहानियां हैं। तो बच्चों को हम कह ही नहीं सकते कि हमारे पास नहीं है। पॉडकास्ट, यहाँ पे मैंने पॉडकास्ट के लिंक आप लोगों के साथ शेयर किए। स्वामी विवेकानंद जी के विचार हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाने, तो आप
जरूरी नहीं है कि अनसीन पैसेज जो देना है, जो आपको ये देना है कि आप कोई कहानियां ढूंढें। छोटी छोटी वर्कशीट भी हम बच्चों को सुनकर उसके ऊपर छोटा सा कार्य, एक वर्कशीट जो है हम दे सकते हैं। सुनो कहानी सुनो, ये भी एक पॉडकास्ट है जो हिंदी में लोक कथाओं को, कहानियों का संग्रह है, मनोरंजक भी है और शैक्षिक भी है। तो हम जानते हैं कि हम हमारे बच्चे को क्या दे रहे हैं, तो बच्चा गलत इसका प्रयोग नहीं करेगा। बच्चों की कहानियां हैं, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए आप कहानी का चयन कीजिए ताकि बच्चा जो है उस तक पहुंच सके वो कहानी। लेखन कहानी, अब लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए सहयोगी कथा लेखन, हम छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांट दें और उन्हें एक विषय दे दें, और प्रत्येक छात्र जो है एक वाक्य या अनुच्छेद लिखता है। अब फिर उस कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले छात्र को देता है। अब जब वो पूरे अपने छोटे से ग्रुप में बैठे हुए, एक दल में बैठे हुए, तो एक दूसरे के सहयोग से वो कहानी को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है शोर होगा, कक्षा में बच्चे बात करते हैं, नहीं, हमारे निर्देश ऐसे होने चाहिए कि बच्चा सही दिशा में काम करे। अगर आप सभी को एक साथ नहीं देना चाहते, आप छोटे छोटे एक गतिविधि एक बार करवाइए, दूसरी बार बच्चों के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आज मिस हमारे लिए क्या करने वाली है, दूसरा दे दीजिए ताकि बच्चे लिखें और उसे अपने अंदाज में प्रस्तुत करें। किरदार साक्षात्कार, किरदार, आप वो किरदार हो, छात्रों से उनकी पढ़ी जा रही किताब से या उनके द्वारा बनाए गए किसी भी किरदार में से एक किरदार को उन्हें कहिए कि आप चुनिए, और फिर आप वो किरदार हो और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक साक्षात्कार आयोजित कीजिए। अब किरदार के दृष्टिकोण से सवालों के उत्तर देता है छात्र, तो छात्र उस किरदार की मानसिकता को भी महसूस कर सकता है। उल्टी कथा लेखन, कहानी को शुरुआत से न लेते हुए चलो कुछ ट्विस्ट किया जाए, कुछ अलग किया जाए, कहानी को अंत आप बता दीजिए। और अब हम चर्चा करेंगे, चलो बच्चों अब बताओ, अगर ये कहानी का अंत है तो इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इस कहानी में हम क्या क्या डाल सकते हैं, इस कहानी की शुरुआत आपको क्या लगता है क्या होगी। बच्चा सोचेगा। जो हम चाहते हैं जरूरी नहीं है उस कहानी का, जब भी हम कहानी पढ़ाते कहते हैं ना, रीडिंग में भी देर आर डिफरेंट फ्रेज, देर आर डिफरेंट टर्म्स, कि आप पहले क्या करवा रहे हो, बाद में क्या करवा रहे हो, अंत में क्या करवा रहे हो। ऐसे ही जब आप लेखन की बात करते हैं तो लेखन में भी बच्चे को मौका दीजिए कि वह अपने विचारों पर, हम कहते हैं कि आज आसान है, चैट जीपीटी आ गया है, ये आ गया, बच्चों के लिए चीजें आसान हो गई हैं, लेकिन बच्चों की रचनात्मकता नष्ट नहीं होनी चाहिए। वो रचनात्मकता, वो लेखन कौशल हमें बढ़ाना है और छोटी छोटी गतिविधियों से हम उसे बढ़ा सकते हैं। चित्र प्रेरणा, चित्रों के द्वारा प्रेरित कीजिए बच्चों को। छात्र को एक चित्र दिखाएं और कहें कि उसके आधार पर कथा या विवरण दे। अब जैसे चित्र अभी आप सभी के सामने है, अब इस चित्र को देखकर बहुत सारे विचार हमारे मन में उठ रहे हैं। क्या क्या विचार हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से विचार आपके मन में उठ रहे हैं, क्या है इस चित्र में, क्या दिखाई दे रहा है। यादें बचपन की, कैसे जब हम बैठ जाते हैं और पुरानी जब हम तस्वीरें निकालते हैं तो हर एक के चेहरे पर उत्सुकता। नेगेटिव हाँ जी, नेगेटिव्स भी, एक बच्चे ने नेगेटिव्स पकड़े हुए हैं फोटो के। हाँ, यस, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बच्चे ने नेगेटिव्स पढ़े को। हमारा बच्चा पूछेगा मैम ये क्या है, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं, वो तो सेल्फी वाले जमाने के बच्चे हैं, तो वो कुछ नया सीखेगा। अब इनके साथ जब वो बैठे हुए हैं, उनके मन के भाव, आप अपने घर में भी हम ये क्रिया करते हैं, बचपन की कोई भी एल्बम खोलिए, कितनी उत्सुकता चेहरे पर है, सब काम छोड़कर हम उसमें डूब जाते हैं। बच्चे को बोलने का अवसर मिलता है, बच्चा लिखता है। संगीत प्रेरणा, बहुत सारे बच्चे लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें प्रेरित कीजिए लिखने के लिए। जरूरी नहीं है कि हम उनसे कहें कि अच्छी कविताएं ही लिखिए, आज का जमाना अलग अलग चीजों को बढ़ावा दे रहा है, पॉप संगीत आ रहा है, हमारा क्लासिकल आ रहा है, हर प्रकार का संगीत जो है बच्चे को लिखने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। मुझे याद है हमारे विद्यालय में एक बच्चा था, वो अपने गीत लिखता था और वो गाता भी था, वीडियोस बनाता था, और यूट्यूब पे तो आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लाखों कमा रहे हैं, क्योंकि वो इतने हुनरबाज हैं।
तो उस हुनर को हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तो नहीं दे सकते, हमें हर तरफ से ध्यान रखना है कि हम उन्हें बढ़ावा दें, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए हम उन्हें तैयार करें। समाचार, ये बहुत ज्यादा एक नए तरीके से हम रख सकते हैं कि छात्रों को वर्तमान घटना पर एक वार्ता लिखने का काम सौंपे। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? अब उस न्यूज के बारे में बच्चा क्या जानता है? पहले हमने सुना कि बच्चा कहाँ, मतलब समाचार सुन रहा था कक्षा में। अब दूसरी गतिविधि हम कर सकते हैं कि बच्चा लिखे। कि अब जैसे ही आप ये चंद्रयान की बात तो हमने कर ली, सब बच्चों को पता है। अब चंद्रयान जब वहां पर लैंड हो रहा है, पूरा देश कैसे जुड़ा हुआ है, देश के अंदर कैसी लहर थी, कैसे हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर बैठा हुआ देश के प्रत्येक वैज्ञानिक को सलाम कर रहा था, उनके कार्यों की सराहना कर रहा था। ये बच्चा अगर अनुभव ने लिख पाता है, एक अपना नया समाचार बनाता है। छोटा सा, अगर आप लोगों को मालूम होगा, हम जब गूगल खोलते हैं तो गूगल में जहाँ आपके गूगल फॉर्म्स बना रहे हो आप, वहां पे एक वेबसाइट का भी ऑप्शन आता है। आप अपने बच्चों के बनाए हुए, जो भी बच्चा छोटी छोटी गतिविधियां कर रहा है, आप उसकी चित्र लीजिए, आप उसमें वहां डालिए और आप अपनी कक्षा की वेबसाइट बनाइए। बच्चा खुश हो जाएगा, मेरी फोटो है वहां पर, मम्मा मेरी देखो ये कविता यहाँ पर डाली है मिस ने, ये समाचार मैंने लिखा था। यहां से क्या होगा, बच्चे का लेखन कौशल बढ़ेगा। मिक्स के कथा, डायलॉग्स जो हैं, हम डायलॉग्स नहीं बना, कॉमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमिक्स निर्माण, ये आजकल के लिए बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं बहुत प्रसन्न। कई बच्चे कार्टून कैरेक्टर्स बहुत अच्छे ड्रॉ करते हैं, उनके लिए वो छोटे छोटे संवाद लिखें, अपनी छोटी छोटी कॉमिक्स बनाएं। आज छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं जो लिखने में अच्छे हैं, वो अपनी अपनी किताबें छाप रहे हैं। तो ये विश्वास हमें उन्हें दिलाना पड़ेगा, ऐसी कहानियां हमें उनके सामने रखनी पड़ेगी जो उनके लेखन को आगे प्रेरित करे। नए फॉर्मेट में समाचार पत्र, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक हमें पता है पारंपरिक समाचार पत्र ऐसा आता है, उसमें ये विषय है। अब चलो, आपका मन क्या करता है, कैसे विषय उसमें होने चाहिए, कौन से विषय आपको ऐसा लगता है कि समाचार पत्र में नहीं है लेकिन होने चाहिए। बच्चे ने समाचार पत्र को अच्छे से छान मारा। बच्चे को ये पता है पहले पन्ने पर क्या होता है, दूसरे पर क्या होता है, तीसरे पर क्या होता है। जो बच्चा घर में कभी समाचार पत्र खोलेगा भी नहीं, वो इस एक्टिविटी के लिए, ऐसे कार्यों के लिए उसे आदत हो। और वो नए तरीके, अब जब आपको नया बताना है तो उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि उसमें है क्या। तो बच्चा सीखेगा और लिखेगा, और जब लिखेगा तो उसको सराहना जब हम करेंगे, छोटे छोटे हम स्टार्स देते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, हम उन्हें शाबाशियां देते हैं, बस यही हमारा जो शाबाशी है, न जाने कितने संपादक, कितने लेखक, कितने कवियों को जन्म देती है। संकेत लेखन, उन्हें संकेत दीजिए, क्या चाहते हैं हम। समाचार पत्र की रिपोर्ट लिखने के लिए गए, मौसम की, आप मौसम, एक किसी भी मौसम का जिक्र कीजिए बच्चे के साथ और उसे कहिए चल बेटा अब हम इस मौसम के ऊपर जो भी शब्द आपके मन में आ रहे लिखो। बच्चा लिखने लग जाएगा। जरूरी नहीं है ना, पहले उसे सूची तो बनवा लीजिए, उसे पता तो हो गर्मी का मौसम आए तो कौन कौन से शब्द तुम्हारे ध्यान में आ रहे हैं, लिखो। अरे सिर्फ तुम्हारे 40 हुए, उसने तो 50 लिख लिए, चलो 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 देखते हैं सबसे ज्यादा कौन लिखता है। बस अब उसके बाद बच्चों को बोले, अब वो भूलेंगे ही नहीं, उन्हें अच्छे से याद रहेगा कि ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में क्या क्या है। बड़े अच्छे से बच्चे का अनुच्छेद, क्या बच्चा पूरा बड़ा सा निबंध 2-3 पेजेस भर देगा। हो सकता है उसमें त्रुटियां हो, लेकिन विचार तो जागे, बच्चे की भावनाएं तो जागी, बच्चा समझ तो पाया अंतर को जहां पर जरूरी है। एक छोटा सा चित्र दीजिए, ब्लॉक्स बना दीजिए, चलो बेटा 4 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया बच्चों को। आप जातिवाचक संज्ञा छांटिए, आप व्यक्तिवाचक छांटिए, आप भाववाचक छांटिए, आप समूहवाचक छांटिए। बच्चा लग गया कार्य पर, और जैसे ही आपने संकेत सही दिए तो बच्चा कार्य अवश्य करेगा ना। राइटिंग स्किल्स को, लेखन कला को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए अनेक प्रकार के यहाँ पर उदाहरण जो है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे पठन कौशल की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं कि जब हम रीड करते हैं, प्री रीडिंग, देन ड्यूरिंग द रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग, बाद में
पहले क्या होना चाहिए, कहानी जब आप शुरू करने वाले हो उससे पहले बहुत सारी गतिविधियां हैं जो हम छात्रों को दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस पाठ के अंदर ये शब्द बच्चे को आए, ये मुहावरे बच्चे को आए, पहले ही क्या वो जानता है। जरूरी नहीं है ना हम हर एक पाठ में से बहुत सारे 20 पर्यायवाची नहीं निकालते। अब वो जब 20 भी अगर 15 डाले हमने, 15 में से 5 हम वो डालते हैं जो बच्चा जानता है। वही जो जानने वाले शब्द हैं हम पहले पूछ लें। सो चित्र प्रेरणा, छात्रों को पठन के विषय में या मुद्दे से संबंधित एक चित्र दिखाएं। उनसे कहें कि वे वर्णन करें कि वे क्या देख रहे हैं और पाठ की सामग्री के बारे में पूर्व अनुमान लगाएं। लेट देम इमेजिन क्या दिखाई दे रहा है, कहानी में क्या होगा, एंड द चाइल्ड विल स्टार्ट थिंकिंग। शब्द दीवार, शब्दों की एक दीवार बना, शब्दों को लिख दीजिए, जैसे हम बोलते हैं ना शब्द सीढ़ी बना दीजिए और बच्चों को उसके ऊपर सोचने दीजिए। चर्चा प्रश्न, पठन के विषय से संबंधित मुक्त प्रश्न पूछिए। अब जैसे जरूरी नहीं है कि हम पाठ को सीधा शुरुआत करते हैं, नहीं करते, हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों को पूछकर एक भूमिका तैयार करते हैं ताकि उसके बाद हम अपने विषय पर आए। तो ये चर्चा जो प्रश्न है वो आप बच्चों से पहले पूछें। शब्दावली का पूर्व ज्ञान, कौन कौन सी शब्दावली छात्र को होनी चाहिए और कौन सी हमने बतानी है, पहले जो है उसका भी हमें उसे लिस्ट देनी चाहिए ताकि छात्र उसे पढ़ सके। पूर्वानुमान क्रिया, पाठों छात्रों को पठन का शीर्षक दे और कहें कि चलो बच्चा, अब शीर्षक के आधार पर आपके मन में एक उत्सुकता आनी चाहिए कि अब आगे कहानी में, इस कहानी में क्या हो सकता है, क्या क्या विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं, क्या होगा कहानी में। अब बच्चा जब सोचेगा तो उसकी उत्सुकता बढ़ेगी और वो कहानी को ध्यान से, कि मैं तो सोच रहा था इस कहानी में ये होगा लेकिन इस कहानी में ये है, तो बच्चे की उत्सुकता जागी। रोल प्ले हम सभी करते हैं, बच्चों को उनमें शामिल करवाते, स्थितियां देते हैं, एक घटना देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि चलिए आप उसमें अभिनय कीजिए। एकांकी में ये सभी शिक्षक जो है कक्षा में करवाते हैं। वीडियो क्लिपिंग्स या डॉक्यूमेंट्री, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री दिखाइए उस विषय से संबंधित। सांस्कृतिक अन्वेषण, कि अगर हम किसी फॉर एग्जाम्पल कोई भी उदाहरण जैसे हम लेते हैं कि आप पढ़ा रहे हो, आप किसी संस्कृति के विषय में या कठपुतलियों का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो बच्चे ने जाना कहाँ पर है ये कला, राजस्थान, वहाँ की वहाँ का परिधान क्या है, वहाँ की कला क्या है, उनके यंत्र क्या है, संगीत क्या है, और धीरे धीरे छात्र जो है उस संस्कृति से जुड़ता है, उनके बारे में परिचय प्राप्त करता है। अब शुरू हो गया हमारा पाठ। अब पाठ के बीच में हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें हम पाठ के दौरान कर सकते हैं। टिप्पणी करना, छात्रों को पाठ में महत्वपूर्ण वाक्य या नए शब्दों या महत्वपूर्ण विवरण के इतिहास के बारे में जानने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। वे टिप्पणियां या सवाल करेंगे और जब सवाल कर रहे हैं तो पुस्तक के बीच में जो मार्जिन है वहां पर वो अपने छोटे छोटे सवाल लिख सकते हैं। चर्चा समूह, हम कक्षा को समूह में बांट सकते हैं और प्रत्येक समूह जो है फिर कक्षा को उसी कहानी को संक्षेप में, जितना आपने पढ़ा है, एक ही दिन में हमारी कहानी समाप्त नहीं होती, जितना आपने पढ़ा है उससे कहिए संक्षेप में उसका विश्लेषण करे, उसे प्रस्तुत करे, पढ़े उसको। छात्र पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं, जो छात्र हैं, पाठ के जो प्रमुख चरित्र हैं, अब उस चरित्र की विशेषताएं क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो आपको क्या प्रेरणा देता है, इस पर हम बच्चों के विचार जान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चे अलग विचारों के साथ हमारे सामने उस पाठ को रखते हैं। कई चीजें कई बार छूट जाती है, बच्चा बोलता है नहीं ये भी तो उसकी क्वालिटी है मैम, एंड हम बोलते हैं यस बिल्कुल सही। दृश्य की सहायता से, दृश्यों की सहायता से, ऑडियो विजुअल वी ऑल नो हम लोग यूज करते हैं, हम चार्ट्स का प्रयोग करते हैं, हम लोग वीडियोस दिखाते हैं, पाठ के बीच बीच में हम बच्चों को सवाल करते हैं। पूर्वानुमान और निष्कर्षण, छात्रों से पाठ से आगे क्या होगा, बीच में कहानी को रोक दीजिए और फिर अब बताओ अब आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या इसके द्वारा ये कहा गया संवाद उचित है, क्या इस संवाद में परिवर्तन किया जा सकता था, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें ये जिस तरीके से उसने अपने विचार रखे वो सही नहीं है, वो अनुचित है। अगर वो बच्चा बोलता है हाँ मैम अनुचित है, क्यों है,
बच्चा उसकी गहराई को समझेगा। सिर्फ पाठ पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं होता, बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है वो अत्यंत आवश्यक है। संक्षेप में पूरी कहानी होने के बाद क्या छात्र जो है, जब आप पढ़ रहे हो, आज का खंड आपका खत्म हो गया है, आप आज जो सोच कर आए थे कि आज मुझे इतना करना है, पाठ पूरा करना है, तो पूरा पाठ पढ़ाने के बाद क्या बच्चा पूरी कहानी को संक्षेप में हमारे सामने रख पाता है? क्या वो रीड कर पाता है? क्या वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाता है? इस पर हमें ध्यान देना है। तुलना और वितर्क, शब्दावली विस्तार। शब्दावली विस्तार तो ये बहुत अच्छी है, ये सभी गतिविधि करते होंगे। जब हम पाठ पढ़ाते हैं हम बोलते हैं ये संज्ञा है, यहाँ चलो बच्चों इस पूरे अंश में से विशेषण छांटिए, सर्वनाम छांटिए, पर्यायवाची बताइए, विलोम बताइए। तो हमारे पाठ के साथ साथ हमारे बच्चे जो हैं क्या उसे पढ़ पाते हैं, क्या रीड कर पाते हैं, क्या वो सर्वनाम को, संज्ञा को, भेदों को छांट पा रहे हैं। आपका व्याकरण भी साथ साथ बच्चों के अंतर्मन मतलब बच्चों तक पहुंच जाता है। तुलना और वितर्क, दो कहानियों के पात्रों को ले लीजिए, जो कहानियां मिलती जुलती हैं, अब उन दोनों पात्रों को बीच में रख के अब उनको कहिए चलो हम दोनों पात्रों के ऊपर तुलना करेंगे। अब आप अपने विचार बताइए, ये पात्र जो है उसके विचार कैसे थे, इनके कैसे हैं, दोनों के चरित्र में क्या अंतर है, दोनों के चरित्र से आपने क्या सीखा। और बच्चा जो है वो बहुत कुछ यहाँ पर रीड कर पाएगा, बता पाएगा। ग्राफिक संगठन का बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग चार्ट्स बनाते हैं, हम लोग माइंड मैप करते हैं, मानचित्र बनाते हैं छोटे छोटे बच्चों के पठन को सरल करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनको समझ में आए। तो अब उसको वो जरूरी है कि वो उसको संगठित करके रखे अपनी किताब में। जब आप बता रहे हो, जब आप पढ़ा रहे हो, जब हम पढ़ाते हैं हम लिखते हैं पहला चरित्र नाम लिख दिया, हम उसके नीचे 1 2 3 4 उसके चारित्रिक गुण लिखे। अब उन चारित्रिक गुणों के सामने हमने उसको उसका वर्णन किया। तो क्या बच्चा वो टेबल बना रहा है, क्या बच्चा अंतर को जो हम लिखवा रहे हैं उसे रीड करने के लिए बोलना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। और बहुत ज्यादा कार्यरत जो होता है दैट इज बाहर टिकट, दैट इज एग्जिट। जब हम कक्षा से निकल रहे हैं, जब हम बाहर जा रहे हैं, तो जाने से पहले भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चे को कहाँ तक समझ में आया। हमारी कक्षा के 30 बच्चों में से 20 बच्चे हर चीज को समझ पाते हैं, लेकिन हर बच्चा उस चीज को समझेगा जरूरी नहीं है, एक ही बार में समझ में आए आवश्यक नहीं है। कई बार हमें उनके अंतर्मन तक पहुंचने के लिए अब वो अभी एग्जिट स्लिप का मतलब क्या है कि जब आप निकल रहे हो बच्चा नाम नहीं लिखेगा, अपना नाम नहीं लिखे, बच्चा सिर्फ प्रश्न लिखे। आपने प्रश्न किया कि आपको क्या क्या समझ में, अगर उसे समझ में नहीं आया वो प्रश्न लिख कर दे सकता है। और अध्यापिका बिना बच्चे की आइडेंटिटी को जाने सीधा कक्षा में आकर उन प्रश्नों का हल कर सकती है अगली कक्षा में। तो ये क्या है, ये इवैल्यूएशन है। हम भी समझते हैं कि यहाँ पर ये चीज है। जब हम छोटे छोटे बच्चों की परीक्षाएं लेते हैं, एक प्रश्न सभी बच्चे जो है वो गलत करते हैं, फिर हम अगली कक्षा में क्या करते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, हम उसके ऊपर अधिक उदाहरण देते हैं, ताकि बच्चे का वो जो ज्ञान है वह सुदृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए और वो बच्चा उस चीज को समझ सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर गतिविधि हम हर पाठ में नहीं कर सकते, लेकिन हर पाठ में नई गतिविधि करना है, ये यदि हम सोचकर अपना लेसन प्लान बनाते हैं और कक्षा में जाते हैं, इससे छात्रों में एक रोचकता बढ़ती है। मेरी एक सहेली है कक्षा में, वो हमेशा जैसे कक्षा चौथी में प्रवेश करते वो पहेलियां सुनाती। वो जैसे ही कक्षा में प्रवेश करेंगे पहेली से शुरुआत करेंगे और बच्चे वेट करते हैं आज कौन सी पहेली है, हमें तो सब आता है हम बता देंगे। और वो कोशिश करते रहते हैं, दिमाग लगाते अब क्या होगा, आंसर क्या होगा, और वो रिसेस तक वेट करते हैं, बताती नहीं है वो तुरंत, उनको सोचने पर मजबूर करती है और फिर रिसेस तक उनको किसी एक बच्चे को आंसर देती है एंड देन सभी बच्चे ओ आई, बहुत ज्यादा उत्साह जो है कक्षा में बना रहता है। मुहावरे हम एक ही दिन में नहीं कर सकते, बहुत सुंदर सुंदर रिसोर्सेज अगर आप देखोगे कि मुहावरे के कितने सुंदर चित्र वर्णन के रूप में, कितना सुंदर एक पीपीटी मैंने ग्रुप में देखा था, बच्चा कितनी आसानी से मुहावरे सीख जाएगा। रोज हम नहीं कर सकते, एक मुहावरा एक दिन, जैसे कक्षा में गए आप एक फलक शाम पट पे आप लिख दीजिए एक मुहावरा, उसका मीनिंग बताते, उसका अर्थ बताते, चलो बच्चा इसका
हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। धीरे 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 साल में जहां हम जा रहे हैं, अगर बच्चा 50 भी मुहावरे याद कर पाता है, बहुत बड़ी बात है। और याद करने के साथ साथ उसे अपनी शब्दावली में, उसे अपनी वाक्य रचनाओं में प्रयोग करना सीखे। इस पर भार देना, इस पर बोलते ना, इस पर बल देना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा और भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के शंकाएं हैं तो हम उसका भी हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी क्या है कि नई नई चीजें सीखना, बच्चों के साथ बहस, मतलब बच्चों को अपने साथ पुस्तक समीक्षा, ये भी एक बहुत अच्छी गतिविधि है। पात्रों का साक्षात्कार, वो हमने आगे चर्चा कर ली। पुस्तक की समीक्षा, आप जो भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जानते ही नहीं कि आजकल नई कविता पुस्तकें कौन सी हैं जो उन्हें पढ़नी चाहिए। आप अपनी लाइब्रेरी में से उनके आयु वर्ग के हिसाब से छोटी छोटी पुस्तकों के 4 से 5 नाम दीजिए उन्हें कहिए चलो हम इसे पढ़ेंगे। नहीं पढ़ पाता बच्चा, नहीं समय मिल रहा, कोई एक पुस्तक कक्षा में ले आइए, एक कहानी सुनाइए, और 2 कहानियां 3 कहानियां जब हो गई, चलो बच्चों अब इस पुस्तक के ऊपर आप समीक्षा कीजिए, आपको ये पुस्तक कैसी लगी, इसमें क्या था। बच्चे को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। जब तक हम उनमें वो रोचकता नहीं लाएंगे, तब तक बच्चे जो हैं, जहां तक मुझे लगता है कि अधिगम प्रभाव, मतलब हमारा अधिगम ऐसा नहीं है कि यही मेथड्स, देयर डिफरेंट मेथड्स। कई बच्चे करके सीखते हैं, कई बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, कई बच्चे निरीक्षण करते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से सीखते हैं। कई बच्चे परीक्षण के द्वारा सीखते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ता है तब वो सीखते हैं। कई बच्चे सामूहिक गतिविधियों से सीखते हैं, कई विचार गोष्ठियों से और कई परियोजनाओं से। ये अलग अलग तरीके हैं छात्रों तक अपने ज्ञान को पहुंचाने का। आप सभी को गोकुलाष्टमी की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा मैम जी, अब मैं आपसे निवेदन। हाँ जी मैम। धन्यवाद मैम। मैम, आपके पूरे सेशन के समय ऐसे लग रहा था कोई भी एक पॉइंट आपने छोड़ा नहीं है, हर पहलू को आपने छूने की पूरी पूरी कोशिश की है, और हम लोग सभी कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे थे कि हम सब वो सब चीजें यूज करते हैं, लेकिन कुछ नई चीजें भी थी। तो चैट में एक मैम ने पूछा था कि क्या आप टॉक शो को थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे? जी मैम। कोई और, बस एक ही प्रश्न है? पहले मैं अभी उस तक मतलब एक ही टॉक शो, प्रश्न है, हाँ इसके बाद हम हैंड रेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो लोग अपनी कुछ भी संशय है तो खुद पूछ सके। जी। अब टॉक शो में क्या करते हैं हम लोग, आप बच्चों को बुलाइए और कोई भी एक विषय दीजिए। अब यहाँ पर बच्चा बैठ गया, ओके, और आपने उसको एक छोटा सा ग्रुप बनाकर दे दिया, 1 2 3। उसमें 3 बच्चे हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं, 4 बच्चे हो सकते हैं। आपने उन्हें वहां पर विषय दिया। कक्षा को अगर आप 5 या 7 भागों में डिवाइड करते हैं, आप हर एक को एक एक विषय दे दीजिए। अब वहां पर पहले तो वो बच्चा अपने उस छोटे से समूह में ही उस विषय पर अच्छे से चर्चा करेगा। जब वो पूरी तरह से चर्चा कर लेते हैं, अब उसके बाद उन्हें मंच पर बुलाइए। और अब मंच पर जब वो आ रहे हैं और अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उन्हें मौका दीजिए। तब उन्हें मौका दीजिए कि वो जो बोल रहे हैं, क्या बाकी सभी छात्र जो हैं, क्या वो उनसे सहमत हैं? आसान नहीं होता ना पूरे क्राउड को अपनी बातों से सहमत करवाना। तो अब हमारा बच्चा जो है अपनी टॉक के द्वारा, अपने बोलते ना संभाषण शैली जो है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है, क्या वो कर पाता है? सो ये है मतलब ये होता है कि आप उन्हें मौका दे रहे हैं, आप उन्हें वो मंच दे रहे हैं और आप उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वे अपने विषय को, अब जैसे ही वो अपनी बातों को रखने की कोशिश करेगा, बहुत सारे हाथ उठते हैं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। अब जब वो प्रश्न बोल रहा है, पूछे जा रहे हैं, तो अपने आप को वो कितना अभिव्यक्त कर पा रहा है, कितने अच्छे से वो अपनी बात को रख पाता है, ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। आई थिंक बिल्कुल इनके सही प्रश्न। मैम। काफी बार ऐसा होता है कि हम खुद कन्विंस हो जाए तो दूसरों को कन्विंस कर पाते हैं, और यही इस प्रयोग में पता चल पाएगा कि बच्चा खुद कितना कन्विंस्ड है, कितना वो सोच रहा है कि जो मैं। यस, आप उस टॉक शो में कितने ज्यादा अपने आप को बोलते हैं
टिक पाए हो सबके सामने और अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत कर पाए हो, तो वहां पे बच्चे का कौशल जो है वो नजर आता है, उभर के आता है। जी मैम। बिल्कुल मैम। मैम विजेता जी कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं शायद। विजेता जी अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम, जय हिंद मैम। नमस्ते मैम मैम। मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बोला था अपनी वेबसाइट बनाइए या पॉडकास्ट बनाइए, वहाँ बच्चों की लिखी चीजें शेयर कीजिए, तो ये हम किस प्रकार से बना सकते हैं? क्योंकि अभी उतना हम कंप्यूटर से जानकारी कंप्यूटर की उतनी अधिक नहीं रखते हैं। और दूसरा एक मेरी मैम आपसे आप प्रार्थना थी। जी जी मैं बोलूँ, एक प्रार्थना थी कि ये जो आपकी पीपीटी जिसके माध्यम से आपने हमें पढ़ाया था, क्या ये आप हम हमारे साथ किसी प्रकार शेयर कर सकती हैं? अवश्य मैं सर से कहूंगी, आप लोगों को सभी को मेल में मिल जाएगी। थैंक यू मैम। और मैम ये जो वेबसाइट है ना, मैं जरूर चाहूंगी कि मैं इसके ऊपर एक मतलब आप लोगों को जरूर दिखाऊं। जैसे आप गूगल फॉर्म बनाते हैं ना, तो आप जी गूगल में जाते हैं, तो वहां पे आपको ऑप्शन है गूगल क्लासरूम है, देन वहां पे ऑप्शन आपको गूगल फॉर्म बनाने का है। वैसे ही वहां पर एक वेबसाइट बनाने का भी ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो, आप अपना मतलब अपने हिसाब से आप उसको नाम दे सकते हो, आप उसके अंदर छोटे छोटे फोल्डर्स ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं जरूर चाहूंगी कि मैं एक छोटा सा सेशन लूं, जी जिससे मैम, मतलब जरूर कीजिएगा, मैं बहुत मैं मतलब इस अच्छा बात को रहेगा। मानती हूँ कि हम हिंदी शिक्षक जो है ना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास हमारे अच्छे कार्य का जो बोलते हैं ना दस्तावेज तो आजकल हर जगह चाहिए, प्रूफ क्या है। तो ये जो जी वेबसाइट जो हम हर क्लास के हिसाब से बनाते हैं वो हमारी संपत्ति है। जैसे टीचर्स डे में बच्चे जो कार्ड देते हैं वो हमारी संपत्ति है, ऐसे ही हर साल आप उस वेबसाइट में नई क्लास का फोल्डर ऐड करते जाइए। तो आपके पास और उन बच्चों के पास जब लिंक है तो बच्चा भी देख रहा है, पेरेंट्स भी खुश हो रहे हैं, और सबको मतलब एक मौका मिलता है। थैंक यू मैम, मुझे ये विचार बहुत पसंद आया, मैं ये करना चाहूंगी, लेकिन अभी मैं उसमें जरूर मैम, मैं जानकारी इकट्ठी देखूंगी करूंगी कि किस तरह अगर से मैं बना छोटा सा सकती हूँ। वीडियो बना के शेयर कर पाई तो मैं ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच मैम, और आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें। धन्यवाद थैंक यू आप। सो मच। सुधीर जी प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आवाज आ रही है मैम? जी मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब आप प्रश्न पूछते हो तब आप अपना कैमरा ऑन कर लो, हमें अच्छा लगेगा। सुधीर जी। आवाज आ रही जी मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए आप। है? मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने वर्कशीट का बताया है गतिविधि, वो किस वर्कशीट की गतिविधि किस तरह कर सकते? मैम आपकी आवाज, The चित्रा bandwidth मैम आप, is not good. Internet connection is not good. She can switch off the camera. मैम आप स्विच ऑफ कर लीजिए कैमरा और फिर से प्रश्न कीजिए। मैम जी मैम। हॉट सीट की जो गतिविधि आपने बताई है, वो किस तरह कक्षा में कर सकते हैं? मैम आप रिवीजन लेते हैं ना एग्जाम्स के पहले, परीक्षाओं के पहले, हाँ जब हम पुनरावर्तन करना चाहते हैं, अब हम चाहते जी हैं कि मैम। हमारे बच्चे सब आंसर दे, तो आप मतलब बच्चों को कह दीजिए कि अभी कल हम हॉट सीट खेलेंगे, तो एक बच्चा जो है हॉट सीट पे बैठेगा, 5-5 मिनट सबको मौका दीजिए, 5 मिनट बच्चा वो हॉट सीट पर बैठा है, आप प्रश्न करते जाइए, और बच्चे जो है वहां से प्रश्न करेंगे, उनके मन में जो शंकाएं हैं, सो प्रश्न कर रहे हैं, ये जो बच्चा हॉट सीट पे बैठा है वो उसका उत्तर देगा। तो हमारा जो पर्पस होता है, जो उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो है उस पाठ को अच्छे से समझ ले, तो जितने प्रश्न बच्चे करते हैं उन प्रश्नों का उत्तर उस हॉट सीट पे बैठे हुए बच्चे को देना है। तो एक उत्साह रहता है बच्चों में, और बड़ी अच्छे से हमारा जो पुनरावर्तन है बहुत अच्छे से सफल होता है। गीता जी, गीता के जी। चित्रा मैम, नीलम मैम और पूनम मैम, मतलब शुरुआत से अब तक उनका कैमरा ऑन है। मैं जी बहुत मैम। ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ आप दोनों से, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी निष्ठा से मतलब दोनों अच्छे से बैठ के, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नीलम मैम आप कुछ कहना चाहेंगी?
धन्यवाद मैम। इतनी अच्छी वर्कशॉप हो रही है तो तल्लीनता से बैठूंगी तभी तो सिखा पाऊंगी और भी कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे भी तो सीखना है, पहले मैं सीखूंगी तभी सिखा पाऊंगी। बिना वीडियो ऑन किए एकाग्रता आएगी ही नहीं, फिर तो दिमाग इधर उधर ही चलेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। मुस्कान मिट्टू जी। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनुभवों को हमने आज जाना है, बहुत अच्छा लगा हमें मैम। मैम मेरा जी मैम मैं यहाँ पर दोहा कतर में एज हिंदी टीचर पढ़ा रही हूँ जी मैम। बच्चों को। फॉरेन बच्चे भी हैं मेरे पास और विभिन्न विभिन्न राज्यों से आए हुए बच्चे हैं। तो उनके साथ कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहता है हमारा उनके साथ, मतलब उनको समझाने के लिए। तो कई बार हमारी भी ट्रांसलेशन ऐसी हो जाती है कि हम भी वहां पे रुक जाते हैं, क्योंकि सारा हमारा जो है हिंदी में ही है तकरीबन। फिर भी हम कोशिश काफी करते हैं कि जितना हो सके उतना हम उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाँ जी, तो मैम इसके बारे में कुछ मुझे आप बताएंगे कि किस तरह से मैं उनको मतलब बता सकूं, कर सकूं हेल्प मैम उनकी। ये जो यहाँ पर जो मतलब मैं भी मस्कट में थी और मैंने भी ये अनुभव किया है कि ये जो बच्चे हैं ना, क्योंकि उनकी भाषा जो कौशल जो है वो विकास हुआ ही नहीं है और शब्द भंडार नहीं है उनके पास। तो ऐसे बच्चों से बहुत बड़े बड़े आंसर्स हम याद ना करवाते हुए उसी आंसर को आप छोटी छोटी पंक्तियों में विभक्त कर दीजिए। जैसे आपने वर्कशीट बनाई, जब आप वर्कशीट बना रही हैं उनसे कोई भी विषय पर आप चाहते हैं कि वो बच्चा बोले, तो आप उसे पहले लिखकर उसे पॉइंट्स मार्क कर दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। उसको 5 सेंटेंसेस याद करना इजी लगता है। वो जहां बड़ा देखता है, लेंथ देखता है, वो घबरा जाता है। और एक विश्वास दिलाना कि आपने बहुत अच्छा किया बेटा। वो जो मैंने आपको कहा, जब तक हम उन्हें प्रेज नहीं करते, जब तक हम उन्हें शाबाशी, हम तो खुद शाबाशी के भूखे, हमें भी कोई शाबाशी दे दे तो बोलते ना खुशी से एकदम गर्व से फूले नहीं समाते। तो बच्चों को जितना आप उनकी प्रशंसा करेंगे वो उतनी उत्सुकता से काम करते हैं। सिर्फ छोटे छोटे इसमें शब्द भंडार भी उनका धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एकदम से नहीं होगा मैम। कोरोना में जहां उनका शब्द भंडार बढ़ना था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। अब शिक्षक के रूप में हमारा ही ये दायित्व है कि हम उनके अंदर पहले रुचि पैदा करें और फिर छोटे छोटे विषयों में उसको छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में उन्हें बताएं। और इंग्लिश का ट्रांसलेशन वहां करना पड़ता है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता नहीं तो ये हमारा दायित्व बन जाता है। तो कई शब्द जो हैं लिखने दीजिए उन्हें बुक में इंग्लिश के, अगर वो लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, साथ में उसे बोलिए बच्चा लिखो हिंदी में। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने तुम्हें इंग्लिश में बताया, लेकिन हिंदी में आपको जवाब देना है तो ये शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब तो वैसे भी एनईपी कहती है कि आप लोकल लैंग्वेज यूज करें। जी नहीं मैम ऐसा है, मतलब हम भी, मैं यहाँ पे थी ना तो वहां पर भी मलयालम में जैसे मैम बोल रही है इंग्लिश में वहां पे एक्सप्लेन कर रही है, यहाँ पे मलयालम में हिंदी टीचर्स मलयालम में एक्सप्लेन करती थी। क्योंकि जरूरी क्या है, पहले हम बच्चे तक वो कहानी तो पहुंचाएं, बिल्कुल बिल्कुल, के बाद वो याद करेगा। समझ ही नहीं आई तो वो बेचारा याद कैसे करेगा। जैसे हमारे लिए कोई अन्य भाषा पढ़ना मुश्किल होगा वैसे उसकी स्थिति है। काया जी, काया जी। यस मैम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मैम कि 300 लोगों की वर्कशॉप को अटेंड करने के साथ साथ इतना आनंददायक तरीके से जो प्रस्तुति हुई ये अत्यंत सराहनीय है। और मैं अपने विचार को प्रस्तुत करना चाहूंगी यहाँ की, जैसा कि मैम ने अभी बताया कि किस तरह से हम अपनी भाषा को रोचक बनाएं जिससे कि विदेशी बच्चों के साथ हम अपना तालमेल बिठा सकें। तो जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि मैं 5 वर्ष तक कर्नाटक में शिक्षण कार्य करती रही, और जब मैं यहाँ से दिल्ली से कर्नाटक गई तो मैम मुझे ना तो इंग्लिश पता थी और ना ही मुझे कन्नड़ पता थी। केवल हिंदी भाषा ही का ही ज्ञान मुझे था, क्योंकि मैं हूँ उत्तर प्रदेश से। तो वहां पर मैंने अपनी भाषा को उतने ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करना शुरू किया जैसे कि यूपी में बोलते हैं। अब बच्चों को पहले तो कहते थे मैम प्लीज टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश और मुझे इंग्लिश आती ही नहीं थी।
लेकिन जब मेरे शब्दों का प्रभाव उन बच्चों पर पड़ा तो मैम 1 साल के बाद क्या हुआ कि इंग्लिश टीचर ही कंप्लेन करने लगी कि बच्चे हिंदी में बात करते हैं इंग्लिश पीरियड में भी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैम क्या हुआ कि हमारे सर जो थे वो केरल से थे, तो आपको तो पता है तमिलनाडु और केरल वाले कितना इंटरेस्ट से, हमारे हिंदी में उतना इंटरेस्ट रहता नहीं उनको। प्रिंसिपल सर भी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि एक वर्ड इंग्लिश नहीं आती थी मुझे। नहीं, लेकिन मैम हमें बहुत गर्व है आप पे। मेरे शब्दों का जो प्रभाव रहा उससे मैंने मन मोह लिया उनका कि अंततोगत्वा मेरे प्रिंसिपल मुझसे हिंदी में बात करने लगे। 3 महीने तक उनकी हिंदी मुझे समझ में नहीं आती थी। बहुत तो बढ़िया। मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना मानना है कि आप अपनी भाषा को जितना रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे उतना ही ज्यादा लोग आपकी भाषा को सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जब भी हम दोहे पढ़ाते हैं ना, मैं कभी भी दोहे शुरुआत नहीं करती, पहले मैं उन्हें दोहे के नियम बताती हूँ। वो 13-11 मात्राएं कैसे गिननी है वो सिखाती हूँ। बिल्कुल, मातृ छंद पर जब आप जाइएगा तो अत्यंत आवश्यक है। यस यस। बहुत, उसके बाद उन्हें वो गंभीरता समझ में आती है कि कितना मुश्किल है इन चयन। अब जब कविता लिखनी है तो सिर्फ गेयता होनी चाहिए और अंतिम शब्द जो है वर्ण मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो समरसता रही आज की वर्कशॉप में, मैं अत्यंत सराहनीय तरीके से इसको प्रस्तुत करना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जनरल अक्सर क्या होता है कि हम बैठे तो होते हैं वर्कशॉप में लेकिन मजा नहीं आता है। जब मजा नहीं आता है तो फिर हमारा ध्यान भंग होता है। आज मैंने बहुत आनंद लिया और बहुत ही अच्छा लगा। अत्यंत सराहनीय रही ये वर्कशॉप और बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यशोदा जी। नमस्कार सभी को। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह मैं पेमेंट कर पाऊँ, लेकिन गूगल पेमेंट मैं यूज नहीं करती हूँ और जो HDFC है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, तो उसके लिए क्या उपाय है? Madam, you can save this link and you can do any time. Maybe next week also you can do. About this workshop, I want the certificate from this workshop as well. That is what you can do any time. May not be today or tomorrow. You can do. Every information is there in the form. You can just read the form. Yeah, I read the form, sir. I read the form. और उसी को पढ़ने के बाद मेरा ये प्रश्न था कि मैं उसे नहीं कर पा रही थी, तो क्या ये एक बार पेमेंट करने के बाद मैं हर वर्कशॉप अटेंड कर पाऊंगी, ऐसा कुछ है? हाँ, नहीं। या हर वर्कशॉप पे मुझे 150 और 100 रुपीज पे करने होंगे, ऐसा है? मैम आई थिंक सर बिजी हैं। आप इस लिंक को, सर ने कहा है कि आप इस लिंक को सेव कर लीजिए, और अगर आज आपको दुविधा है, आप नहीं भर पा रही हैं, तो आप कल या परसों कभी भी कर सकती हैं। ठीक है सलमा जी। यशोदा जी। सलमा जी। हेलो। हाँ सभी को शुभ संध्या। और सुनीता शर्मा मैम, मतलब मैंने बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड की है। मैक्सिमम तो हम लोग इंग्लिश की वर्कशॉप अटेंड करते रहते हैं, लेकिन हिंदी का जो वेबिनार आपने जो शुरुआत की थी, तो शुरू से लेके अंत तक मतलब एक पल भी ना तो नजर हटी और ना ही मन में आया कि यार अभी थोड़ा सा बोझल हो रही हूँ, ऐसा फीलिंग नहीं आई। और कंटिन्यूटी मतलब जो एक समरसता, जैसे मैम ने अभी यूज किया था शब्द कि समरसता बनी रही लास्ट तक, तो वो वही चीज मैंने यहाँ महसूस की मैम। और बहुत बहुत मतलब दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं हिंदी को तो हमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको सिखाई, हम लोग को मैंने बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड की है मैम। मैं पहले बता दूं, मैं भी यहाँ पर हूँ, दुबई में हूँ, एक्चुअल में अबू धाबी में।
तो यहाँ पर भी होता क्या है मैम, जैसे मैम आई थी अभी, उन्होंने बात की थी कि दोहा में बच्चों का अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, तो हिंदी उनके लिए उतना अच्छा हिंदी वाला माहौल नहीं है, तो कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये तो निश्चित है, सभी जगह होता है, क्योंकि हम लोग अगर साउथ के बच्चे लेते हैं तो वो उनका नेटिव नहीं है हिंदी लैंग्वेज, तो इसलिए वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं जो वर्कशॉप अटेंड की, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो दिल से शुक्रिया मैम। दूसरी चीज, मेरी एक और क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ पे जैसे हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि बच्चों को दूसरे चैप्टर के साथ में दूसरी चीजों से कनेक्ट करते हुए बच्चों को सिखाइए, सबसे बड़ी चीज। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अगर मैं 8वीं तक के भी बच्चे लेती हूँ, तो अगर 2% बच्चे छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो 98% बच्चे हैं, वो हिंदी अभी ना तो पढ़ पा रहे ना समझ पा रहे वाली सिचुएशन में है। तो अब उस सिचुएशन में आप अदर सब्जेक्ट से कनेक्ट करके, आप ज्योग्राफी से करो, इंग्लिश से करो, मैथ के साथ में एग्जाम्पल दो, रिसर्च कराओ करके, ऐसे हमको वर्कशॉप में सिखाया जाता। तो मेरा मतलब ये है कि जब बच्चा रीडिंग कर पा या लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहा, तो हम इतने हाई लेवल का उसको कनेक्शन करा के उनसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे थोड़ा गाइड करिए मैम, प्लीज। अवश्य मैम, अवश्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और ये मतलब मुश्किल जो है वो आती है, और शिक्षक होने के नाते मतलब हमें ऐसा लगता है हम कहाँ किस हद तक जाएंगे बच्चे को वो उत्तर जो है आ जाए। अब जैसे मैंने आप कोई जैसे कोई भी आप विषय मुझे मतलब जैसे जैसे हमने प्रदूषण से शुरुआत की। क्लाइमेट एक्शन का भी चल रहा है करंट में, वो हाँ, भी। अभी क्लाइमेट है। अब जैसे आप जो ज्योग्राफी में बच्चा सीजन्स पढ़ रहा है, साइंस में भी सीजन पढ़ता है, ज्योग्राफी में सॉइल पढ़ता है। अब वही सॉइल क्या हम अपनी हिंदी में नहीं ला सकते? ला मृदा, सकते हैं। मृदा के कितने प्रकार है बच्चा, काली मिट्टी कहाँ पर है, लाल मिट्टी कहाँ पर है। अब बताओ, क्या लाल मिट्टी में जो चीजें पैदा होती हैं क्या हम उसको यहाँ पर लगा सकते हैं? तो क्यों नहीं लगा सकते? उसके लिए वातावरण आवश्यक है। तो हमने बाकी विषयों के साथ उस विषय को जोड़ा। जब हम ये बना रहे हैं, समय सारणी बना रहे हैं, हम उसको हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, झांसी की रानी आप कविता पढ़ा रहे हैं। अब झांसी की रानी की कविता पढ़ाते समय बच्चा जो है, एक बच्चा अभिनय कर रहा है, दूसरा बच्चा झांसी की रानी ने कब वो वहां पर मतलब कब उनका जन्म कब हुआ, देन वो कब यहाँ पर आई, मृत्यु कब देन हुई, हाँ, कैसे उन्होंने शासन कब तक अंग्रेजों को किया। हराया। तो ये जो ईयर्स है, राइट, हम उनको वो याद करवाना चाहें, तो हम अगर उसको सामने नीचे लिख देते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, अब आप उसको हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे सब्जेक्ट्स जो है वो कनेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स जो है हमारे, आप सीजन्स उठा लीजिए, आप पॉल्यूशन उठा लीजिए, आप अपना इंग्लिश का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, भाषा कौशल है तो वो तो हमारी अपनी कहानी में, हर कहानी के द्वारा जो है हम उस कौशल का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ओके। अपने उस विषय को, अभी इसके ऊपर भी एक कार्यशाला जरूर करनी चाहिए। अभी कैसा कि अभी ऑन द स्पॉट बताने की जगह मैं आपको फिर उदाहरण दूंगी कि ये चैप्टर है और इसके साथ हम ये एक्टिविटी करेंगे, तो हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं। ये जो लेसन प्लान मैम हम बनाते हैं ना, इसलिए ये जरूरी है कि आप लेसन बहुत प्लान जरूरी है। बनाते समय लास्ट आप अपनी गतिविधियों को कैसे अन्य विषयों से जोड़ते हैं। जोड़ दें। अब जब पूर्व आपने पाठ पढ़ाने से पहले जो पूर्व ज्ञान है, इस पूर्व ज्ञान में आप ये चीज कीजिए। हाँ, आप डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे बच्चे को झांसी की रानी, आप पहले उसका पूर्व ज्ञान जानिए। वेरी गुड मैम। राइट। ओके ओके, थैंक यू मैम। मेरा एक जगह पे वो एक और है इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन, कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चों में अभिव्यक्ति का कौशल कैसे डेवलप करें, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनके पास जैसे आपने बताया वोकेबलरी कम है ना। बच्चे जब शब्द नहीं रहेगा तो बच्चे अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाएंगे किसी चीज की, है ना, उनके विचार वो व्यक्त नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में अब वोकेबलरी अगर हम लोग देते भी हैं, तो बच्चे कुछ लिमिटेड तो कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड तो इंग्लिश के ही चलते हैं, एक इस पीरियड मैम हिंदी का है, वो भी वीक में दृश्य 2 पीरियड 3 पीरियड मिलते हैं हमें। एक ना मैम वेबसाइट है वर्ड वॉल। वर्ड वॉल, अब वर्ड वॉल में क्या है, जब आप जाते हैं बच्चा शब्द जो है बनाना सीखता है। अब उसमें वर्ड वॉल में
आपको पर्यायवाची भी मिलेंगे, विलोम भी मिलेंगे, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है। क्विजेज आप बनाइए, क्विजेज तो हमने कितना मतलब ऑनलाइन में हाँ, क्विजेज quizzes तो बहुत किए बनती बच्चों है, ने। बनाते हैं, आप हाँ छोटे छोटे चित्र बनाइए, जी। आप छोटे छोटे चित्रों को इंग्लिश में भी और हिंदी में भी उसे समझाने की कोशिश कीजिए और उसे ओके, पूछिए। अब कहानी में आप जो भी कहानी है उसी कहानी को चित्र में प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए। दृश्य श्रव्य इसीलिए कहा जाता है, हर बच्चा या सीखने का उसका हाँ तरीका अलग है, दृश्य हर श्रव्य, कोई तुरंत नहीं सीखेगा, तो आप अलग अलग जरिए अपनाइए। कहीं चित्रों का माध्यम, कहीं पर आप शब्द लिखिए, कहीं पर आप छोटी छोटी चिट्स बना दीजिए। चलो, एक एक वाक्य वाले उत्तर, जब आप एक वाक्य के 5 क्वेश्चन को एक साथ जब वो करेगा, उसे पता है बेटा देखो एक एक वाक्य आ गया आपको, ये एक वाक्य में भी यहाँ से क्वेश्चन कॉपी कर ले, एक ही शब्द डाल रहे हो अपना यहाँ, उस शब्द को अच्छे से लिख लो। चलिए अब ठीक इन 5 को एक साथ लिख के दिखा दो, लो आंसर रेडी हो गया। तो वो हम्म विश्वास हमें उनमें भरना पड़ेगा। वो सिर्फ घबराते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है हमें नहीं आती, ये यस मैम, दिमाग से ही उनके निकाल देना है कि तुम्हें नहीं आती। प्रेस कीजिए जितना कर सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अभी भी मैं बहुत कुछ था बताने वाला, लेकिन वही ना समय वर्ड वॉल का बस यूज करेंगे, वैसे पहले किया था हम लोग ने, अभी तो छोड़ दिया है, लेकिन अब फिर से करेंगे। मैक्सिमम तो हमारा जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैं अप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच मैम, और ऐसे सेशंस करते रहिए, हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे आपका। सुनीता थैंक मैम यू, थैंक यू, थैंक यू, पूरी थैंक यू सो टीम को मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल सलाम सर, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए हृदय की गहराई और धन्यवाद आपको। मैम ये श्रेय भी, मतलब मैं जब मस्कट में थी मेरी मुलाकात प्रिया मैम से हुई, और प्रिया मैम से मैं सलाम सर के साथ जुड़ी हूँ, तो मेरा वाह, तो दिल से दोनों को धन्यवाद है कि आज मैं यहाँ हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छी जगह पे हैं, और बहुत से टीचर्स को आप इंस्पायर कर रहे हैं, उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, और जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से टीचर्स यहाँ होंगे मैम, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनके बहुत से क्वेश्चन आपने अपने आप ही सॉल्व कर दिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम। बिल्कुल, ये मंच बना ही इसलिए है कि हम सब एक दूसरे से सीखें। एक सफल बिल्कुल, शिक्षिका वही हो सकती है जो हमेशा सीखती रहे। एक सीखती सफल रहती, शिक्षक टीचर्स इज हमेशा ऑलवेज सीखता है। लर्नर्स। थैंक यू चित्रा मैम। धन्यवाद मैम। सत्र को अंत करते हुए अब मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी ईश्वर का, और उसके साथ साथ धन्यवाद करूंगी डॉक्टर अब्दुल सलाम, बीजू सर, अरुण मोहन सर और बीटेक के सभी साथियों का, जिनके सफल निर्देशन और सफल सहयोग के साथ हमने यह सत्र पूरा किया। हमने बहुत बारीकियों से हर चीज सीखी, हर चीज, हर विधि को एक नए तरीके से देखा, उसके बारे में जाना, और ये सब मुमकिन हुआ सुनीता जी के द्वारा। सुनीता जी की हर गतिविधि में मैंने एक बात देखी, जो थी कि कक्षा में एक ऐसा वातावरण बनाओ जिससे बच्चा अपने आप को सीखने से रोक ही ना पाए। चारों कौशलों के विकास में सुनीता जी ने जितनी भी विधियां बताई, हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी शिक्षा में, अपने रोजमर्रा की बच्चों को पढ़ाने के काम में उसे जरूर काम में लेंगे, उपयोग में लेंगे। और सुनीता जी, हम सब वापस आपके पास लौटेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। अवश्य मैम, अवश्य। आप अपनी प्रतिक्रियाएं ग्रुप में डाल सकते हैं, सभी लोग, व्हाट्सएप ग्रुप सर ने बनाया है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर डालें, आप अपने विचार उसमें डालें, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैंने बिल्कुल इसीलिए कहा ना, बिल्कुल, मतलब एक तरीका है कि हर एक का तरीका अलग होता है, मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। ये जो ग्रुप था वो तब बना जब हमें सबको जरूरत थी। एक पैंडेमिक के समय हमें नहीं समझ आ रहा था हम क्या करें, कैसे करें। अब हम लोगों ने एक दूसरे से सीखना शुरू कर दिया है, तो अब हम नहीं रुकने वाले। सलाम सर, धन्यवाद। Thank you, ma'am. Have you concluded? यस सर। Yeah, thank you so much. We are very happy that we got one more, very effective resource person. Sindha ma'am, congratulations. Thank you so much. You have made a lot of efforts. Your PPT is a testimony. You have done the PPT so well with a lot of research and all.
Thank you so much for your presentation and the way you presented. I could gather from the chat box that you could satisfy, you could make all the participants very happy. There was serious learning happening, and also there was exchange of experiences and ideas. So, Chitra ma'am, equally thanking you for your efforts, for your help as a moderator, taking the session throughout and helping us a lot with a lot of sessions. And we are very grateful to both of you, both Sunita Sharma, Chitra Sharma. See you again. Thank you. Like, sir, you've given us a good platform. Yeah, thank you, ma'am. चित्रा मैम Neelam बहुत बहुत Shukla, धन्यवाद. so many are on cam, patiently listening. Poonam ma'am and Van Nesen, Kansagara School, all educators, your participation, your learning is, what we are, looking forward to. We have been, despite our busy schedule, we have been arranging sessions for you. Please make use of it, and whatever you get from our sessions, please implement and become a very effective teacher. We are all good teachers, but we have to become extraordinary teachers. Right. So all the very best to everyone. We are always at your service. We are open in our groups also. We have 2-3 Hindi beta groups. You can also, come over there. I think there is also serious learning is happening. Somebody's asking questions and others are helping, and a lot of Immediately. materials are shared, and that is wonderful. Thank you so much. Have a great night. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sunita. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Chitra Sunita. ma'am. Thank you, बहुत ma'am. बहुत Thank you, sir. Good night. Happy Janmashtami, everyone. Everyone.